Good evening, everyone. I am C. Dipali Kochita, the MOC for today's session. I would like to invite our today's speaker, CA Preetam Mahure, sir, for as the speaker for today, and our MCM member, CA Ajinkya Kadive. Welcome all, sir. Ajinkya, sir, would you like to address? Yes, sir. Thank you, Dipali. Good evening, everyone. My name is CA Ajinkya Randive, Managing Committee Member of Pune Branch. I welcome CA Preetam Mahure, and I also thank him for accepting our today's invitation. And our topic for today will be recent amendments, including rate exemption, RCM clarifications, etc. We have organized this 5-day series on GST, which will first 2 days are mostly on the recent amendments. Then 1 day will be on refunds, RCM. So from Monday to Friday, 5 to 7, we have organized it. So I hope you will gather much knowledge from the same. I will hand over to Dipali. Thank you. Thank you, sir. I would now like to introduce our today's speaker, CA Preetam Mahure. Thank you, Dipali. Preetam sir is an internationally recognized speaker, writer, and advisor on GST and how to be future-proof. Preetam sir has authored more than 15 books which provide practical advice on optimizing the GST or VAT. He is also an invited columnist for leading media houses including Business Line, Asian Age, Business Standard, Deccan Herald, Economic Times, Times of Oman, etc. Preetam sir has addressed more than 200 conferences on GST or Gulf VAT in India, UAE, Oman, Bahrain, and Kuwait for ICI, CII, NACIN, ASSOCHAM, NASSCOM, MCCIA, DCCIA, BCCI, etc. So he's a well-authored speaker for today and well-related speaker. So I would like to welcome you, sir, and I would like to hand over to you for today's session. Thanks, Dipali ji. Thanks, Ajinkya ji, for this wonderful opportunity given to us to share our views on the recent changes. I think last 5 साल की अगर हम बात करते हैं, GST has seen numerous changes because when you look at the act, the rules, the notifications, the circulars, the press release, the instructions, and followed by various advanced ruling, AAAR, NAPA orders, High Court orders, Supreme Court orders, and tribunal is yet to be formed. And additionally, we also have numerous service tax related judgments and excise related judgments, which do have implication even on GST regime or GST related points. And that's the reason as indirect tax consultant professional, our life has become a bit, I would say, complicated after introduction of GST, because we were told that GST is basically good and simple tax. But as we are progressing into GST, we are able to realize how difficult or complicated this simple tax is. Friends, typically when you attend seminars in last 2.5 years, I would say, typically from start of the pandemic, you would have attended numerous webinars, and this is typically the feeling of the participant, that they don't understand at the end of the day what was the discussion of the topic. And that's the reason we thought, let's make this session more kind of interactive session, and I will keep on troubling you by asking various questions and hope to get a couple of answers from you as well on the same. So first, let us understand, friends, last 1 month, if you really track, you would be in a position to understand that there are numerous changes. Be it the notifications, there are more than 19 notifications which have already been issued. Be the circular, there are around 10 circulars which have been issued, 2 instructions, 1 press release, even a couple of changes in the act got notified, and even rules got changed. So as a GST professional, I think all of us have enough things to discuss today particularly,
because there are so many things. Rather, when we are going to discuss today, our key focus agenda would be the point which are relevant to most of you and most of your client as well. So we'll be taking up those points, I would say, in much more depth, rather than the points which do not have that much significance for your client, but do have some academic implications. And that's what the theme of the day. First, let us start with the circulars. When you look at the circular, there are 3 latest circulars which have been issued: serial number 177, 178, and 179. When you look at these circulars, which are dated 3rd of August 2022, you will be in a position to realize that these circulars are talking about certain fundamental aspects. And one of the most critical and fundamental aspects of GST law is what is the meaning of the term supply. Friends, all of you would recall that on 1st of July 2017, when GST law was introduced, that time, naturally, there was a debate, or before the introduction of GST, there was a debate as to what should be the taxable event. Because under the erstwhile law, that is the erstwhile excise law, the taxable event was manufacturing activity. That is, if you manufacture something, you pay excise duty. Under the erstwhile service tax law, the taxable event was provision of service. Under the earlier VAT law, the taxable event was sale of goods. Now, suddenly you have to merge all these events, and you are supposed to, as a government, introduce one single event which will attract GST. And that's where the term supply was coined. Because supply effectively meant that whether you manufacture and sell, whether you trade in goods, or whether you provide services. And this term supply was supposed to cover all these transactions, because the term supply is basically part of the entire big term, that is supply chain. Because that's what commercially we say, supply chain of goods, supply chain of services. Correct? And everybody is one of the cog in the wheel of that supply chain. And government said, let us tax this supply, whether it is supply of goods or services, irrespective of that, let us tax this supply, and let us not use multiple terms, but use one single term, that is supply, instead of earlier terms such as manufacture, provision of service, and sale. And that's where the term supply was holding utmost importance in GST when GST was introduced on 1st of July 2017. However, unlike the earlier laws, the term supply was not defined, I would say, in a detailed manner. Right now also, Section 7 of GST Act does define supply, but it defines in an inclusive manner. And we will come to that definition at a later stage. But before we understand that definition, we need to understand the first and foremost thing, that while the term talks about what is the meaning of the term supply, what it includes, it doesn't specify, it doesn't talk about or activity as something known as, which was earlier known as deemed sale or deemed manufacture या declared service, जिसको हम deeming fiction कहते हैं. So जब GST आया तो उसमें कोई भी specific deeming fiction कि मैं कहूँगा कि missing था, और वो missing जो fiction है उसको ज्यादा gravity मिला जब 1 फरवरी 2019 को कुछ अमेंडमेंट्स आए, जिसमें सेक्शन 7 को जो रेफरेंस दिया गया था, शेड्यूल 2 आप सबको पता रहेगा, which talks about certain transactions qualifying as either supply of goods or supply of services. इस शेड्यूल 2 में कुछ चेंजेस किए गए थे, उसका रेफरेंस में सेक्शन 7(1)(a) जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें. And because of that important change, now the fundamental question is whether there is existing deeming fiction under the GST law. Because as far as earlier law is concerned, sale, आप सबको पता रहेगा, पहले सेल का जो मीनिंग था उसको बाद में 1983 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके, आप सबको पता रहेगा 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके उसको एक्सपांड किया गया था, यानी डीम्ड सेल का कंसेप्ट लाया गया. बाद में मैन्युफैक्चरिंग को भी एक्सपांड किया गया बाय वे ऑफ डीम्ड मैन्युफैक्चर, एंड सर्विस को डिक्लेयर्ड सर्विस यानी डीम्ड सर्विस का एक कंसेप्ट लाया गया था. बट जब जीएसटी आया, अनलाइक द अर्लियर टैक्सेबल इवेंट, ये कोई स्पेसिफिक इस तरह का कोई इंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं किया गया था. एंड दैट द रीजन देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाट अबाउट लिक्विडेटेड डैमेजेस, व्हाट अबाउट द फैक्ट व्हेन समबडी इज लिविंग अ पेनल्टी ऑन हिज वेंडर, व्हेन समबडी इज पेइंग कंपेंसेशन, वेदर जीएसटी इज पेबल, वेदर जीएसटी इज पेबल व्हेन यू आर कैंसिलिंग योर फ्लाइट, आपको नहीं जाना है तो कैंसिलेशन चार्जेस लग रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए क्या, या कोई लेट पेमेंट या डिलेड पेमेंट चार्जेस दे रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगनी चाहिए क्या. ऐसे अलग अलग इश्यूज अराइज होने चालू हो गए. पहले 1-2 साल ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑडिट्स बहुत कम थे, अगले 2 साल कोरोना की वजह से लगभग टैक्स पेयर
के पास टैक्स अथॉरिटीज आ ही नहीं पाए। एंड फाइनली अभी इस साल लगभग जब जीएसटी ऑडिट चालू होने लग गए तो ये काफी सारे इश्यूज बहुत ग्रेवली या बहुत इंपॉर्टेंटली डिपार्टमेंट के सामने आ रहे थे कि इनके ऊपर जीएसटी पे कराया जाए कि नहीं कराया जाए। In certain cases, we have seen, unfortunately, I would share with you, that some of the taxpayers have even paid GST on these kind of items, even though they were disputable items. Now, before we get into this debate as to whether GST is payable on liquidated damages or not, let me first ask you, and all of you can answer either in Q&A box or chat box, whose responsibility it is to determine whether a transaction qualifies as supply or not. Whether it is the taxpayer responsibility or whether it is the responsibility of the tax authorities to determine whether on a particular income GST is to be paid by that particular person or not. Whose responsibility it is? यानी कि फाइनली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर जीएसटी प्रीतम मौर्य पे नहीं करता, अगर प्रीतम मौर्य को 10 करोड़ का लिक्विडेटेड डैमेजेस मिला है एंड एज ए प्रीतम मौर्य आई से आई डोंट वांट टू पे जीएसटी ऑन दैट. Now, whether Pritam Maurya needs to prove that GST is not payable on that, or whether department first needs to issue a notice to Pritam Maurya. आप चैट बॉक्स में या Q&A बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. What do you think, participants? आप में से कोई बता सकता है? Anyone of you? मनोज जी, मीत जी, नागराजा जी, नीलम जी, पॉल जी, राजेश जी, रोहित जी, सचिन जी, anyone of you, संजय जी, anyone of you can share कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड प्लीज नोट देयर आर नो रॉन्ग आंसर. जीएसटी में तो कोई भी आंसर आपने दिया तो उसको एक एडवांस फीलिंग आपको मिल जाएगा. सो प्लीज कीप इन माइंड देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स इन जीएसटी. Anyone of you? I think all of you are thinking still, so let me share with you in the interest of time. The burden of proof as far as input tax credit is concerned is specifically shifted on the person who is claiming the input tax credit. That is, as far as ITC is concerned, recipient is supposed to prove that he is entitled to claim credit. But as far as whether a transaction qualifies as supply or not, and if you don't pay GST, then the responsibility to prove that transaction qualifies as a supply is cast on the taxpayer. Sorry, it is cast on the tax authority. यानी टैक्सपेयर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने जीएसटी पे करना चाहिए लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर. अगर उसने पे नहीं किया तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज टू प्रूव कि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी पेएबल था. इसके लिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी द टैक्सपेयर नीड्स टू पे दैट टैक्स. सो अगर आपका कोई भी इनकम है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव that this income is subject to GST is cast effectively on the department. It is not on the taxpayer. And इसके लिए आपने देखा रहेगा बहुत बार जीएसटी के जो ऑडिट्स वगैरह चलते हैं, असेसमेंट, स्क्रूटिनी चलते हैं, डिपार्टमेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपको, नोटिस पे रिकवरी के ऊपर आप जीएसटी क्यों नहीं भर रहे हो, लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर क्यों नहीं भर रहे हो, कंपेंसेशन के ऊपर क्यों नहीं भर रहे हो. तो वहां पर आप सबको ये बोलना चाहिए कि सर, ऑब्वियसली आप लीगली बोल नहीं सकते, बट आप ये बोल सकते हो उनको कि सर आप हमें नोटिस दे दीजिए, फिर हम आपको रिस्पांस दे देंगे. बिकॉज कंपनी टिपिकली कोई भी एडिशनल लायबिलिटी विदाउट टेकिंग नोटिस एग्री नहीं करता है. तो यू गिव अस अ नोटिस एंड देन वी विल रिस्पॉन्ड. एंड हो सकता है कि हम टैक्स इंटरेस्ट के साथ पे भी कर दे. दैट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू देन टेक दैट डिस्कशन फॉरवर्ड बाय वे ऑफ अ लीगल सबमिशन. तो जहां पर भी आपको पता है कि मेरा इनकम है, वहां पर यू कैन रिलैक्स. अगर आपने टैक्स नहीं पे किया है ना, आई एम सेइंग इट्स अ डिस्प्यूटेबल आइटम. ऐसा नहीं कि नॉर्मल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नॉर्मल आपका इनकम है एंड नॉर्मल इनकम के ऊपर भी आप जीएसटी पे नहीं कर रहे. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सजेस्टिंग अगर कोई डिस्प्यूटेबल इनकम है जैसा लिक्विडेटेड डैमेज वगैरह है, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट ऑन द टैक्स अथॉरिटीज रादर देन टैक्स पेयर. तो अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो लायबिलिटी टू प्रूव दैट दिस इनकम इज सब्जेक्टेड और सब्जेक्ट टू जीएसटी इज कास्ट ऑन द टैक्स अथॉरिटीज देमसेल्फ. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड लिक्विडेटेड डैमेजेस वगैरह के ऊपर जीएसटी आ सकता है क्या. तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा जो सबसे मेन या इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएसटी का, दैट इज सेक्शन 7. ऑल ऑफ यू नो दैट सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है, इट सेज दैट जीएसटी इज पेएबल ऑन सप्लाई
all supplies of goods and services, and both will attract GST. Correct? Now, when you look at section 9, you know that the term supply is coined or used, and automatically you have to understand the meaning of the term supply. उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 7 में. सेक्शन 7 से सप्लाई का जो स्कोप है वो हम बताएंगे. प्लीज नोट करिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप में से कोई यंग पार्टिसिपेंट है तो प्लीज नोट करिएगा कि सेक्शन 7 ये अलग सेक्शन जीएसटी लॉ में डाल दिया है, अनलाइक सेक्शन 2 जिसमें अलग अलग डेफिनेशन है. तो सप्लाई का भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर कोई ट्रांजेक्शन क्वालिफाई होगा सप्लाई तभी उसके ऊपर जीएसटी आएगा. तो फंडामेंटल जो प्रीमाइस है जीएसटी लॉ का, that premise is resting on the shoulders of supply, and that's the reason the legislator thought it is better to define supply by way of a separate section rather than clubbing it in section 2. Plus आप सबने देखा रहेगा सेक्शन 2 जो होता है, it always starts with unless the context otherwise requires, जबकि सेक्शन 7 में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है. यानी it is not a contextual definition, it is rather a specific definition or meaning of scope of supply. तो सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई दिया गया है जो इंक्लूसिव तरीके से डिफाइन किया गया है. बट इंक्लूसिव तरीका मतलब ये नहीं कि ईच एंड एवरीथिंग विल क्वालिफाई द सप्लाई. इट ओनली मीन व्हाट इट इंक्लूड्स अंडर द एम्बिट. हो सकता है कि सिमिलर कोई एक्टिविटी है, बिकॉज अलग अलग टाइप की न्यूमरस सप्लाईज हो सकते हैं. करेक्ट? जैसा कंसाइनमेंट ट्रांसफर हो सकता है जो टर्म सप्लाई के डेफिनेशन में डाला नहीं है, तो वो भी एक्टिविटी कवर कर सकते हो, बट इट शुड बी सिमिलर टू द एक्टिविटीज व्हिच आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. एंड दैट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड कि सप्लाई इंक्लूड्स लिखा है, तो इंक्लूड का वर्ड ये नहीं मीनिंग कि हर चीज उसमें इंक्लूड होगा. इस रादर से कि सिमिलर टू द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई विल गेट कवर्ड देयर. सो व्हाट इट इंक्लूड्स, all forms of supply of goods or services are both such as, and please note the usage of the term such as, and then it goes on to say sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license and disposal. ये 8 terms उन्होंने यूज किए हैं. So they are saying supply is similar to or such as sale activity, barter activity, transfer activity. Then section 7(1) small a के बाद उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा there is one capital A also, and what it says, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or services as referred in schedule 2. यानी क्लासिफिकेशन के लिए आपको शेड्यूल 2 में जाना है. बहुत बार लोग कहते हैं कि शेड्यूल 2 में अगर कोई एक्टिविटी कवर है, इट इज क्वालिफाइंग एज सप्लाई. It is not a right understanding. Section 7(1) capital A says where certain activities or transactions qualifies or constitute a supply in accordance with subsection 1. यानी कि if it constitutes a supply, then only you have to go to schedule 2 for classification. अगर आपका ट्रांजेक्शन क्वालिफाई ही नहीं कर रहा है सप्लाई करके, तो आपको शेड्यूल 2 की तरफ जाने की ही जरूरत नहीं है. जबकि बहुत बार लोग उल्टा करते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर रिफ्रेनिंग फ्रॉम और टॉलरेटिंग एन एक्ट ये अगर शेड्यूल 2 में कवर्ड है तो देन दैट ट्रांजैक्शन विल क्वालिफाई एज सप्लाई, आपको जीएसटी पे करना है. जबकि दैट इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग. अगर आप लॉ भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू कम टू द सेम कंक्लूजन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई का जो मीनिंग है, इट इज वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 7. 7(1) कैपिटल A says कि if a transaction constitutes a supply, then only you are supposed to go to schedule 2. and इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे जो शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज है, जैसे शेड्यूल 2 में अलग अलग एक्टिविटीज में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, उसमें सीरियल नंबर 5 सब क्लॉज ई पढ़ेंगे. उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि द फॉलोइंग shall be treated as supply of services, namely agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. यानी बेसिकली अगर आप देखेंगे कि to refrain from, to tolerate and to do, ये 3 एक्टिविटीज है जो जीएसटी लॉ में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बोल रहा है कि लायबल टू जीएसटी है, बट provided the transaction qualifies as a supply, as we said just earlier. तो यहाँ पर हमको ध्यान में ये देख रखना चाहिए कि 5 सब क्लॉज ई
अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से शेड्यूल 2 का, यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, टू रिफ्रेन, टू टॉलरेट एंड टू डू. So if any of these 3 things trigger, then only these kind of activities the government is saying is supposed to be covered under the ambit of schedule 2 serial number 5 subclause E. और इसी के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर इशू किया है, वहां पर गवर्नमेंट ने कपल ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट इन द Q&A सेक्शन, बिकॉज चैट सेक्शन शायद एनेबल्ड नहीं है. दैट इज व्हाट कपल ऑफ पीपल आर सेइंग. अगर वो एनेबल्ड नहीं है तो आप Q&A सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि हाउ टू रीड, टू रिफ्रेन, टू टॉलरेट एंड एग्रीइंग टू डू. ये तीनों को किस तरह से रीड करना चाहिए एंड व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसके अंदर कौन सी चीजें गवर्नमेंट को कवर करनी थी, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा. ऑब्वियसली उसके ऊपर एक डिबेट हो सकता है कि गवर्नमेंट ने भले सर्कुलर में कहा कि ये एक्टिविटीज या चीजों को हमको इंक्लूड करना है, बट वेदर दे विल एक्चुअली गेट इंक्लूडेड और नॉट, दैट इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन. बट फर्स्ट लेट अस अज्यूम कि बेसिकली दिस इज राइट क्लैरिफिकेशन बाय गवर्नमेंट, करेक्ट. वो बाद में हम डिस्प्यूट करते हैं, बट पहले इजी रहने के लिए हम पहले अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन राइट है. द फर्स्ट एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज गिवन इज कि लेट अस से अ बिजनेस एंटिटी pays to somebody, that is say Mr. A, certain amount, so let's say 5 crore rupees, so and tells that person you don't compete in this area, यानी कि आप इस एरिया में कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बेचेंगे जो हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं. तो बेसिकली जिसको नॉन कम्पीट फी कहा जाता है. तो बेसिकली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से इन द सर्कुलर दैट इफ a non-compete fee is paid by a business entity to someone, to another business entity or to another individual, then that amount would be subject to GST. That is what this example number 1 says. Then example number 2, the government is saying, let us say there is a school and beside that school there is a factory. अभी फैक्ट्री सुबह 7 बजे चालू होती है एंड स्कूल का भी टाइम सुबह 7 का है. तो स्कूल वाले लोग कहते हैं, मैनेजमेंट कहता है फैक्ट्री को कि अगर ये फैक्ट्री आप 7 बजे की जगह 11 बजे चालू करेंगे तो हमारा स्कूल जो है वो नॉर्मल आवर, जो हमारे स्कूल के जो टीचिंग के आवर्स है, जो विदाउट डिस्टर्बेंस के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, वो हम सुबह 7 से 11 ले लेंगे. तो फैक्ट्री नेचुरली बोलेगा कि हमारा 3-4 घंटे का प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारा लॉस हो जाएगा. देन द स्कूल सेज we will compensate you for that loss provided you keep your factory shut in the early morning hours. So basically to refrain that factory from operating, if the school is paying certain amount, then the government has clarified that this amount will get covered under the ambit of GST, because schedule 2 serial number 5 subclause talks about refraining from an act. That is, you are paying somebody some amount so that he is not doing the things which he is supposed to do. जैसा कि कोई केपेबल है कॉम्पीट करने का, आपसे कंपटीशन कर सकता है, बट आप बोल रहे हो कि पैसा ले लो बट कॉम्पीट मत करो मुझसे. वो फैक्ट्री चला सकता है बट आप बोल रहे हो कि पैसा ले लो बट फैक्ट्री मत चलाओ या मॉर्निंग आवर्स में. सो दैट इज बेसिकली टू रिफ्रेनिंग समबडी, आस्किंग हिम नॉट टू डू समथिंग व्हिच ही इज केपेबल ऑफ डूइंग, एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट एक्टिविटी वी वांट टू कवर अंडर शेड्यूल नंबर 2 5E. देन उन्होंने कहा टू टॉलरेट, ये जो वर्ड है उसका भी उन्होंने एग्जांपल दिया. उन्होंने कहा है कि अगर कोई शॉपकीपर है, अगर आप लक्ष्मी रोड वगैरह में जाएंगे पुणे में, मेनी अ टाइम यू विल सी कि कपल ऑफ जो गोल्ड के शॉप्स है, कपड़े की दुकान है, उसके बाहर पेवमेंट पे आपको हॉकर्स दिखेंगे एंड ये हॉकर को बैठने के लिए जगह खुद दुकानदार देता है. और ऑब्वियसली वो जो दुकानदार, जो शॉपकीपर है, उस हॉकर से हो सकता है कुछ अमाउंट ले पर मंथ, बिकॉज ही इज अलाउइंग हिम टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिज shop, although it may cause certain trouble to him. हो सकता है कि वो जगह वगैरह जो यूज कर रहा है उसकी वजह से कस्टमर को थोड़ा प्रॉब्लम हो, but he is still tolerating that act of the hawker and he is allowing the hawker to function there. तो बेसिकली इसके लिए शॉपकीपर को कुछ अमाउंट मिलेगा, and that's what the government is saying. जब शॉपकीपर को कुछ अमाउंट मिल रहा है 10,000 20,000 per month, this is nothing but an amount which is received
from the hawker and received by the shopkeeper to tolerate that act, कि भैया मैं रास्ते में बैठूंगा तो भी आप टॉलरेट करोगे, बराबर, इसके लिए मैं 10-20 हजार आपको दे रहा हूँ। एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अमाउंट भी लायबल टू जीएसटी होगा। सिमिलरली उन्होंने एक अनदर एग्जांपल लिया, कहा कि देयर इज अ स्कूल विच इज नेक्स्ट टू अ रेसिडेंशियल वेलफेयर जो एसोसिएशन या कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी, उसके बाजू में कोई स्कूल है। उस स्कूल को जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स रहते हैं स्कूल के, उसकी वजह से जो सोसाइटी के बाजू वाले लोग हैं वो सुबह मॉर्निंग में उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो सो नहीं पाते, बिकॉज 7 बजे उनका स्कूल का मॉर्निंग प्रेयर रहता है। तो स्कूल रिक्वेस्ट करता है आरडब्ल्यू को कि हमको प्लीज ऑपरेट करने दीजिए, हमारी मॉर्निंग प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस टाइम पे सब स्टूडेंट गैदर करते हैं। तो आरडब्ल्यू कहता है नो प्रॉब्लम, वी विल अलाउ यू सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट बाय यू टू आवर एसोसिएशन। So basically school is paying certain amount to the residential association, and against that amount the residential welfare association is tolerating the act of the school because they are allowing them to continue the morning prayers। जो भी लाउड स्पीकर वगैरह का जो यूज है उसको अलाउ कर रहे हैं। तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने कहा कि दिस अमाउंट अगेन we will consider as an amount received to tolerate someone and that's covered under Schedule 2 serial number 5UE। Another example the government has given with respect to agreeing to do something. So therein again the government has used residential welfare association as a entity. They are saying let us assume कि there is one residential welfare association या कोई कॉलोनी है, रेसिडेंशियल कॉलोनी है जो एक फैक्ट्री के बाजू में है, और लेट अस से वो जो फैक्ट्री है वो कुछ मैन्युफैक्चर करता है लेदर के प्रोडक्ट्स वगैरह। तो नेचुरली लेदर प्रोडक्ट्स के जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो वहां पर काफी केमिकल वगैरह यूज होता है, काफी हजार्डस केमिकल वगैरह यूज होता है। एंड ये जब उसका डिस्चार्ज रहता है, फैक्ट्री का जो आउटपुट रहता है, डिस्चार्ज रहता है, उसके केमिकल काफी निकलते हैं, बट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक सर्टेन लिमिट लगा के देता है कि आपका जो डिस्चार्ज है इट शुड बी अंडर सर्टेन लिमिट्स। और लेटेस्ट से कि ये जो डिस्चार्ज है फैक्ट्री का इट इज अंडर दोज लिमिट्स, बट फिर भी आप सबको पता है कि केमिकल फैक्ट्री से जब कुछ केमिकल निकलते हैं तो उसका ट्रबल या उसका प्रॉब्लम सर्टेनली वेलफेयर एसोसिएशन के रहने वाले लोगों को होता रहेगा। देन जो वेलफेयर एसोसिएशन वाले लोग हैं वो बोलते हैं, वो रेसिडेंशियल वेलफेयर वाले लोग वो फैक्ट्री को जाके बोलते हैं कि सर आप ये 20 लाख हमसे ले लो, बट आपका जो लिमिट है, जो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है कि 10% डाइल्यूटेड या 10% तक का आपका पोल्यूशन चलेगा, तो हम कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए, यानी आपका 0% पोल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई बड़ा मशीनरी लगता है 10-20 लाख 50 लाख का, तो वो हम आपको देंगे, या हम आपको 50 लाख देंगे, आप खुद आपके उधर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाओ, नो प्रॉब्लम, एंड उसके लिए आपको हम पैसे देंगे। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो 50 लाख रुपए लेटेस्ट से रिसीव कर रहा है वेलफेयर एसोसिएशन से। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि दिस इज बेसिकली द फैक्ट्री इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन, बिकॉज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी ऑब्लिगेशन लिमिटेड है, उसके भी ऊपर जाके जो लॉ का रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर जाके अगर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर फैक्ट्री एग्री कर रहा है, अगर एग्री कर रहा है, तो इन सच केसेस एंड गेटिंग एन अमाउंट फॉर द सेम, देन द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दिस amount would be covered under the clause agreeing to do, or basically following certain obligation which is you are not supposed to follow, and you are doing that against certain sum or amount, then the government is saying कि schedule 2 serial number 5E में ये चीज भी कवर हो जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज क्लैरिफाइंग कि जो भी आप agreeing to the obligation to refrain from an act, to tolerate वगैरह जो कहा गया है, ये जो वर्ड्स है to do an act, ये जो 3 वर्ड है refrain, टॉलरेट एंड टू डू, ये तीनों जो वर्ड्स हैं जो यूज किए गए शेड्यूल नंबर 2 सीरियल नंबर 5E में, यहाँ पर सिर्फ वही जो हमने एग्जांपल दिए है जो सर्कुलर में दिए है, इसी टाइप के सिचुएशन को कवर करने के लिए हमने दिए है, रादर देन लिक्विडेटेड डैमेजेस वगैरह सिनेरियो को कवर करने के लिए। यानी टिपिकली लिक्विडेटेड डैमेजेस वगैरह इसमें कवर नहीं होंगे। ऑब्वियसली उसके बारे में और भी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या कवर नहीं होगा। देन सेकंड, गवर्नमेंट कहता है कि यहाँ पर जब भी किसी को कोई अमाउंट मिल रहा है, जैसा हम बात कर रहे हैं, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, ये जब भी हो रहा है उसके अगेंस्ट कोई पैसा मिल रहा है, देन दैट मनी शुड बी रिसीव्ड अंडर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो या कोई आप अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लो,
बट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप वहां पर होना चाहिए। एंड अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं रहा तो नेचुरली ये भी बोल सकते हैं कि सफिशिएंट नेक्सस नहीं है कि जो आपका सप्लाई हो रहा है एंड जो कंसिडरेशन है, एंड अकॉर्डिंगली आप वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, बिकॉज सप्लाई का एग्जिस्टेंस एक मैंडेटरी एग्जिस्टेंस है। आप सप्लाई को अज्यूम नहीं कर सकते हो, ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है। यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ नेक्सस, यू कैनॉट से जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है इट इज फॉर doing something or to tolerate something or to refrain from doing something. Unless and until GST authorities prove all these things, then only GST is payable, otherwise GST payable नहीं होगा। ये एक important aspect है। यहाँ पर couple of और additional जो important aspects है उसमें अभी हम देखते हैं। वन, liquidated damages, बराबर है। जो liquidated damages है उसके बारे में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सर्कुलर में कहा है। एंड इंटरेस्टिंगली जो टर्मिनोलॉजी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 7.1.3 अगर आप पैराग्राफ देखेंगे, इट इज सेड, इट इज आर्ग्यूड दैट परफॉर्मेंस इज इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी डोंट नो कि कौन आर्ग्यू कर रहा था, बिकॉज अगर टीआरयू या गवर्नमेंट में सर्कुलर इश्यू कर रहा है तो वहां आर्ग्यूमेंट की क्या बात है, ये थोड़ी कोई हियरिंग चल रहा है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यूज वर्ड किया गया आर्ग्यूड दैट। यहाँ पर आर्ग्यू क्या किया गया है कि परफॉर्मेंस इज इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि विदाउट परफॉर्मेंस आप ये नहीं बोल सकते, विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट देयर बीइंग अ सप्लाई, यू कैनॉट से दैट जीएसटी इज पेएबल। देन इट सेज लिक्विडेटेड डैमेजेस कैनॉट बी सेड टू बी अ कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर टॉलरेटिंग द ब्रीच। बिकॉज लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है कि अगर आप में से कोई, समझो एक कंपनी है ए लिमिटेड, और आप में से कोई ए लिमिटेड को कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट यू कम एंड सेट अप फैक्ट्री इन पुणे। वहां पर जो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, यहां पर जो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, आई थिंक देयर आर कपल ऑफ कमेंट्स। अनीश अग्रवाल जी, हेलो अनीश जी, यू आर सेइंग रीडिंग जीएसटी एक्ट 2017, I don't understand. Anish ji, anything specific? Can you please highlight? There are a couple of points. Anish, see, I don't know what point you are trying to make. This session, see, please note, there are a couple of clarifications, there are a couple of notifications, there are a couple of instructions which have been issued, and these would be covered, Mr. Anish, in the next 2 sessions. There is one session today and there is another session tomorrow also. So couple of points I am supposed to cover, couple of points other speakers are supposed to cover, and that's the reason we started with the circular. Then there are a couple of notifications also we are going to cover, but that would be part of the next couple of slides. यहाँ पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट है मिस्टर अनीश आई थिंक अग्रवाल, तो आप स्पेसिफिकली पूछिए ना अगर कोई पॉइंट है तो। आई एम बिकॉज आपकी जो कमेंट है वो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं। आपके 4-5 कमेंट आए हैं, बट कोई स्पेसिफिक है तो आप या तो लिख लीजिएगा मिस्टर अनीश अग्रवाल, या तो मैसेज कर लीजिएगा चैट बॉक्स में या कहीं पर, बिकॉज आपके पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। ये सर्कुलर है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अनीश सर जो नोट, ये मिस्टर अनीश, ये 3 अगस्त 2022 को ये सर्कुलर इशू हुआ है, तो ये तो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना, अभी इसको 19 दिन भी नहीं हुए हैं। तो दैट द रीजन ये जो एकदम लेटेस्ट है जिसके बारे में कहीं पर भी डिस्कशन या कम हुआ रहेगा उसके बारे में पहले हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद में हम जुलाई वाले में जाएंगे। सो जो हम कहते हैं ना उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं हम उसको, जो अभी लेटेस्ट आया है लेटेस्ट इन, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पॉइंट कवर होंगे। एंड देयर आर 4 आवर का सेशन है, आज 2 घंटे का और कल 2 घंटे का है। मुझे लगता है जुगल लेने वाले कपल ऑफ पॉइंट्स और मेरे पास कपल ऑफ पॉइंट्स है, तो आपके दोनों पॉइंट जो जो रहेंगे वो कवर करेंगे ना, डोंट वरी, जस्ट बी देयर इन द सेशन फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, पक्का करेंगे डिस्कस। एंड ये फंडामेंटल पॉइंट अभी आपको लगता रहेगा लिक्विडेटेड डैमेजेस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों क्लैरिफिकेशन है, तो लेट मी शेयर विथ यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी। सप्लाई का जो एनालिसिस है या जो सप्लाई का जो मीनिंग है, अब तक मैं कहूंगा कि कोई भी क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर में इतना डिटेल वे से कवर नहीं किया गया था, एंड दैट द रीजन वी आर डिबेटिंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट सप्लाई मींस और लिक्विडेटेड डैमेजेस गवर्नमेंट क्या कह रहा है, कवर्ड है क्या नहीं। एंड इन कपल ऑफ आर केस, यानी कि जो हम क्लाइंट के साथ हम काम करते हैं, वहां पर यू बी सरप्राइज्ड टू नो 10-10 करोड़ 5 करोड़ जीएसटी अब हम पे हुआ है लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर।
और हमारे पास क्लाइंट बाद में आए हैं, कोई कंसल्टेंट ने या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, लॉयर ने उनको ओपिनियन दिया इट इज कवर्ड. Whereas in couple of our own cases, we had specifically said that liquidated damages के ऊपर GST नहीं आएगा. That has been our position right from day one under the GST law. But जहां पर आपके किसी भी क्लाइंट में पे हुआ है, इंक्लूडिंग आगे हम बात करेंगे नोटिस पे रिकवरी वगैरह पे, यू कैन एक्सप्लोर एन ऑप्शन कि मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ क्या. तो पहली बात, अगर आपने पे किया है तो आप रिफंड लेने का एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज 2 साल का टाइम लिमिट है रिफंड का. एंड सेकंड, अगर आपने पे नहीं किया है तो ये सर्कुलर आपको बहुत हेल्प करेगा. थर्ड, आपका फ्यूचर में कोई भी ऑडिट आएगा जहां पर आपके क्लाइंट को लिक्विडेटेड डैमेजेस, नोटिस पे रिकवरी, इस टाइप का इनकम है, तो आपको ऑडिट का जो भी या असेसमेंट का जो डिस्कशन होगा वहां पर भी आपको ये सर्कुलर हेल्प करेगा. दैट द रीजन वी आर डिस्कसिंग. आई होप दिस क्लैरिफाइज. तो चलो, एंड सिमिलर इनकम, काफी सारे इनकम इसमें कवर किए गए हैं. लिक्विडेटेड डैमेजेस के बाद में व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से इन द सर्कुलर, एंड अगेन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड युवान यूज किया है. In this background, a reasonable view can be taken. Now, it is very interesting to understand reasonable view यानी क्या. It is good also to know the department is taking a reasonable view, CBIC is taking a reasonable view. They are saying this liquidated damages is nothing but an amount paid to compensate any injury or loss, and accordingly, it can be said that it is not liable to GST. यानी liquidated damages के ऊपर जो भी आपको अमाउंट मिला है liquidated damages का, उस अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज द गवर्नमेंट इज सेइंग सच अमाउंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पेमेंट और कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग एक्ट. बिकॉज काफी सारे कंसल्टेंट का, लॉयर का ये कहना था कि अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस पे हो जाते हैं, दूसरा पार्टी लीगल एक्शन नहीं लेगा, यानी दूसरा पार्टी जो है जिसको कंसिडरेशन वो अमाउंट मिल रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस का, वो आपके अगेंस्ट केस नहीं फाइल करेगा. इसका मतलब ही इज टॉलरेटिंग द एक्ट. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड there is a difference between the word consideration and compensation. Correct? जो consideration है वो आपको, आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, सप्लाई करते हो, उसके अगेंस्ट मिलता है. कंपेंसेशन आपको कब मिलता है? when you violate a condition to the contract. कि आपका वेंडर है, आपका कस्टमर है, बराबर है, कि अगर वो कोई वायलेट कर रहा है कंडीशन, तो वहां पर उस वायलेशन के अगेंस्ट आपको कंपेंसेशन मिलता है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से इस टाइप का जो कंपेंसेशन है लिक्विडेटेड डैमेजेस है, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. और ये जो सर्कुलर है, इसमें न्यूमरस एग्जांपल्स गवर्नमेंट ने दिया है और कहा है कि आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. और कौन कौन सा लिक्विडेटेड डैमेजेस तो हमने कहा. दूसरा, उन्होंने कहा कि आप कोई डैमेज करते हो प्रॉपर्टी को, बराबर है, बहुत बार आप कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो, वहां पर कभी कभी जब रेंट की प्रॉपर्टी लेके, यानी कि आप खाली कर रहे हो ऑफिस, तो आप आपका फर्नीचर लेके जा रहे हो, आपका हो सकता है वहां पर इलेक्ट्रिकल्स वगैरह का सामान रहेगा, आपका सर्वर रूम रहेगा. वो जब आप रिमूव कर रहे हो, कपल ऑफ डैमेजेस हो जाते हैं प्रॉपर्टी पर, उसके अगेंस्ट आप कुछ कंपेंसेशन का आप अमाउंट देते हो. आप पेंट खराब करते हो, बराबर है, वहां पर शायद नेल्स वगैरह लगाते हो, तो वो सबके डैमेजेस के लिए भी आपका प्रॉपर्टी ओनर आपसे कुछ अमाउंट लेगा. तो उसके ऊपर भी इफेक्टिवली यू कैन टेक अ स्टैंड बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर नंबर 178 दैट जीएसटी इज नॉट पेबल. एडिशनली काफी सारे केस में आपने देखा रहेगा नोटिस पे रिकवर होता है. नोटिस पे क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कैन यू शेयर नोटिस पे क्या होता है? नोटिस पे रिकवरी होता है. तो बेसिकली नोटिस पे रिकवरी क्या होता है कि somebody is supposed to serve a notice of 2 months, और वो पर्सन कहता है कि नहीं सर, मुझे 2 महीना नोटिस नहीं सर्व करना है, मैं 1 महीना नोटिस सर्व करूंगा, मुझे जल्दी जाना है, बिकॉज नया जो कंपनी है उन्होंने बोला कि 1 महीने में तुझे ज्वाइन करना है तो करो करके. तो बेसिकली वो पर्सन बोलता है कि सर मैं जल्दी जा रहा हूँ, तो 1 महीने का मेरा सैलरी डिडक्ट करना है तो कर लो. तो 1 लाख रुपए आपका सैलरी है, तो 1 लाख रुपए कंपनी रिकवर करता है. और ये जो नोटिस पे अमाउंट है, जो फॉरफीचर ऑफ सैलरी है, कहीं कहीं पर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड भी उसको कहा जाता है. और एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में आप सरप्राइजिंगली, आपको एकदम ऐसा सरप्राइजिंग फील होगा, 3-3, 4-4 लाख रुपए का अमाउंट मैंने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड से रिकवर किए वाले. कि कोई पर्सन बोलता है कि सर मैं यहाँ पर रहूंगा 2 साल, और वो उसके पहले चला जाता है, तो वहां पर जो कंपनियां है 3 लाख 4 लाख इतने बड़े बड़े अमाउंट लेते हैं उस पर्सन से. नाउ क्वेश्चन था कि ये जो 2 लाख 3 लाख जो अमाउंट रिकवर किया जा रहा है एम्प्लॉय से, एंड देयर आर बिग कंपनीज, फॉर एग्जांपल मैं जैसे एग्जांपल नाम ले रहा हूँ, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें काफी बड़े अमाउंट का इस तरह का नोटिस पे का अमाउंट होता है, करोड़ में जाता है कहीं पर. तो यहाँ पर इशू था कि ये जो अमाउंट रिकवरी है इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या, बिकॉज अमाउंट करोड़ में जाता है तो जीएसटी लायबिलिटी भी करोड़ में आता है.
तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया है कि दिस अमाउंट इज नथिंग बट अ पेनल्टी लेविड टू डिस्यूर द नॉन सीरियस कैंडिडेट एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अगेन ये बहुत ही फेवरेबल क्लैरिफिकेशन है। आपके कोई भी केस में अगर आपने लास्ट 1-2 साल में ऑडिट में हो सकता है कहीं पर भी अगर आपने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जीएसटी पे किया है नोटिस पे रिकवरी वगैरह पे, तो आप बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर यू कैन ट्राई टू एक्सप्लोर एन ऑप्शन टू गेट अ रिफंड ऑफ दैट अमाउंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% रिफंड मिलेगा, हो सकता है डिपार्टमेंट एग्री ना करे, कोई ना कोई पॉइंट पे काउंटर करे, बट अगर डिपार्टमेंट का खुद का सर्कुलर है, अगर आपके फैक्ट ऑफ द केस और सर्कुलर के फैक्ट ऑफ द केस मैच करते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर इफ द अमाउंट्स आर सब्सटेंशियल। अगर आपका अमाउंट कपल ऑफ थाउजेंड है, 25-50 हजार अपने ऑडिट में भर दिया नोटिस पे, सो आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। बट अगर अमाउंट सब्सटेंशियल है, जैसे हमारे जो रिसेंट एक क्लाइंट अभी अप्रोच किए हैं जिनका एक से मुझे लगता है 1 करोड़ 20 या 22 लाख कुछ अमाउंट है, तो वहां पर नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग वेदर वी शुड गो फॉर अ रिफंड रूट फॉर द अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय द टैक्स पेयर। सो ये मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने ध्यान में रखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड रिकवरी, फोरफीचर ऑफ सैलरी, दोनों के ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर पास्ट में नहीं पे किया है, वेरी गुड फॉर यू, ऑडिट आएगा तो भी आप बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर यू कैन क्लोज योर केस। पे किया है तो रिफंड का एक्सप्लोर करो, अगर ऑडिट हुआ ही नहीं है और आगे ऑडिट होगा तो आप ये पॉइंट सबमिट कर सकते हो। देन द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट चेक डिसऑनर पेनल्टी। अगर चेक का डिसऑनर होता है तो उसके केस में जीएसटी लगेगा कि नहीं, वहां पर अगेन स्पेसिफिकली कहा गया है कि इट इज बेसिकली फाइन फॉर नॉट टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ चेक डिसऑनर एंड अगेन जीएसटी उसके ऊपर लगेगा नहीं। आपको पता रहेगा काफी सारे दुकान की पायरेसी वाला सॉफ्टवेयर बेचते हैं, पायरेसी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, टोनर, कार्ट्रिजेस, आपने देखा रहेगा, बहुत बार आपने देखा रहेगा लोग बेचते हैं। तो वहां पर ना कंपनी के लोग जाते हैं एंड देन उनके ऊपर कोई पायरेसी वगैरह का अमाउंट वगैरह एडिशनल चार्ज करते हैं। तो वहां पर ये वायलेशन के लिए जो अगर अमाउंट कुछ रिकवर किया गया तो गवर्नमेंट इज क्लैरिफाइंग दैट दिस इज बेसिकली mere flow of money because you are just saying that this is illegal activity which you are doing, so against that you pay a certain amount and on that GST will not be payable. That is what the government is saying. Then you would have seen that in certain cases जो होम बायर्स रहते हैं वो कहीं पर फ्लैट बुक करते हैं, उनको कहा जाता है कि दिसंबर 2021 में आपको फ्लैट का पोजीशन मिलेगा, लेकिन 2023 आ जाता है तभी भी फ्लैट का पोजीशन नहीं मिलता है। तो वहां पर प्रॉपर्टी बायर को कुछ अमाउंट दिया जाता है, रेंट हो सकता है या एक वन टाइम लमसम अमाउंट हो सकता है। एंड ऐसे केस में कुछ केस में तो हमने देखा है कि जो टोटल पेमेंट होता है, बिकॉज 200-300 फ्लैट बायर्स रहते हैं और उनको कपल ऑफ फ्लैट्स भी दिए तो करोड़ में जाता है। तो वहां पर क्वेश्चन था कि वेदर ऐसे केस में जीएसटी पेबल होगा कि नहीं होगा। तो गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड अगेन जीएसटी इज नॉट पेबल इन सच केसेस। एडिशनली फ्रेंड, इन सर्टेन केसेस इट कैन हैपन कि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने कुछ अमाउंट दिया कि मुझे 2 करोड़ रुपए का कोई प्रॉपर्टी लेना है, तो मैं 10 लाख रुपए डिपॉजिट करता हूँ और अगले 1-1.5 महीने में मैं ट्रांजैक्शन क्लोज करूंगा। तो आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख का डिपॉजिट दिया, बाद में आपको जो फंड्स है वो जमा नहीं होते हैं, या बाद में आपको लगता है यार प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ले पाऊंगा, या आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ इफ यू अप्रोच दैट सेलर, जो लैंड ओनर उसको आप अप्रोच करोगे तो वो बोलेगा यार 10 लाख रुपए जो डिपॉजिट दिया था वो मैं वापस नहीं करेगा, तो ही इज फॉरफिटिंग दैट 10 लाख रुपीज फ्रॉम यू। Now, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है दिस अगेन इज जस्ट अ mere flow of money. There is no service which is being provided in this case, and accordingly it is clarified that GST will not be applicable in such cases. Similarly, गवर्नमेंट ने काफी सारे स्पेसिफिक केसेस में भी क्लैरिफिकेशन दी है। जैसा आप सबको पता रहेगा कि जो कोल ब्लॉक थे वो कैंसिल किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, एंड यहाँ पर कोई एग्रीमेंट या कोई ऑप्शन नहीं था, जिसका कोल ब्लॉक कैंसिल हुआ है उसको पेमेंट गवर्नमेंट से लेना था और कोल ब्लॉक ऑप्शन कैंसिल कर दिया था गवर्नमेंट ने बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो वहां पर उस पर्सन को जिसको भी कॉम्पेंसेशन दिया गया, वहां पर क्वेश्चन था कि वेदर उसके ऊपर सर्विस टैक्स या भी जीएसटी आएगा क्या। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि उसके ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। सिमिलरली कपल ऑफ और इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया लगभग डैमेजेस कंपेंसेशन वगैरह वाले केसेस। यहाँ पर और भी अगर आप देखोगे इन सर्टन केसेस ना क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाते हो, आपने देखा रहेगा कभी आप यूज भी नहीं करोगे ना तो भी फिक्स्ड मीटर चार्जेस आते हैं, एंड बाकी के जो चार्जेस रहते हैं वेरिएबल मीटर चार्जेस, यानी कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उतना आपको जीएसटी उतना आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि फिक्स्ड मीटर चार्जेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विस वगैरह बोल के जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि वेदर इट इज फिक्स्ड चार्जेस ऑफ दैट मीटर और वेदर इट इज वेरिएबल, या दोनों भी लगाया आपने तो भी टोटल अमाउंट जो है इट इज नथिंग बट
एन अमाउंट चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर टैक्सेबल नहीं है तो आपका जो फिक्स चार्जेस है वो भी जीएसटी के अंदर एम्बिट में नहीं आएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई वुड से द गवर्नमेंट हैज गिवन। बट ये जो फेवरेबल क्लैरिफिकेशन थे इस सर्कुलर में, यहाँ पर प्लीज नोट करिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने फेवरेबल दिए हैं। देयर आर मेनी अदर क्लैरिफिकेशन जहां पर गवर्नमेंट बोल रहा है कि जीएसटी इज पेएबल। अभी तक हमने देखे जो क्लैरिफिकेशन जो पहले दो स्लाइड में थे वहां पर जीएसटी पेएबल नहीं था, यानी कि इट यू कैन अज्यूम दैट दिस इज बेसिकली एग्जम्प्टेड एक्टिविटी सिंप्लिसिटी के लिए। नाउ इन अदर केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई होटल में जाते हो, बराबर है, आप होटल बुकिंग करते हो 3 दिन का और आप एक ही दिन रुकते हो और आपको अर्जेंटली वापस घर पे जाना है, तो वहां पर होटल वाला बोलता है नहीं सर आपने रूम बुक किया था, आपने 10,000 पर डे के हिसाब से 30,000 दिया था, आपको हम एक भी रुपया रिफंड नहीं कर सकते बिकॉज आपका अमाउंट आ चुका है, तो अब भी रिफंड नहीं होगा। तो बेसिकली आप रहो या ना रहो आपका अमाउंट पे ही करना पड़ेगा। आप नहीं भी रहे तो चलेगा या रहे तो भी चलेगा, आपका अमाउंट पे करना ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कैंसिलेशन के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं। सिमिलरली आपने फ्लाइट कोई बुक किया, फ्लाइट बुक किया आपने एंड नो शो हो गया, नो शो यानी आप वहां पर गए नहीं, आप डिले हो गया, आपका डिसीजन डिले हो गया कि मुझे आज नहीं कल जाना है, तो वहां पर आपने देखा रहेगा बहुत बार कैंसिलेशन चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है आपके होटल के, आपके फ्लाइट के वगैरह, उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बेसिकली जब भी आप कोई फ्लाइट बुक करते हो, होटल बुक करते हो, तो ये बेसिकली एक सर्विस है। इट स्टार्ट्स विथ बुकिंग एंड इट एंड्स विथ योर एग्जिट फ्रॉम दैट होटल और फ्रॉम दैट फ्लाइट, जब आप उतर जाते हो, बराबर, या निकल जाते हो उस होटल से। तो इसमें काफी सारी इन बिटवीन एक्टिविटीज आते हैं। आप बुक करते हो, वो अरेंजमेंट करते हैं आपके लिए, फिर आप ज्वाइन करते हो, वहां पर रहते हो और फिर निकलते हो, या आप फ्लाइट में जाते हो फिर एग्जिट करते हो आपके डेस्टिनेशन आने के बाद में। तो उन्होंने कहा कि काफी सारे सर्विसेज दिए जाते हैं राइट फ्रॉम बुकिंग टू एग्जिट। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप इन बिटवीन डिसीजन लेते हो कि मुझे फ्लाइट नहीं जाना है, फ्लाइट कैंसिल करनी है मुझे मेरी खुद की, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा जो भी कैंसिलेशन चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी आएगा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर कमर्शियल टर्म्स, बिकॉज वेल इन एडवांस इट इज एग्रीड कि अगर आप वहां पर आओगे तो वहां पर, यानी कि अगर आप क्या कहते हैं कि इफ यू गो देयर इन दैट फ्लाइट, टाइमली पहुंच जाओगे तो आपको फ्लाइट में अंदर लिया जाएगा। अगर आप होटल में जाओगे तो आपको उस दिन रूम मिलना ही है आपको। लेकिन अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी आपके नाम पे वो रूम तो खाली रहेगा ना। हो सकता है बाद में कोई कस्टमर को अलाउ कर, दैट इज सेपरेट, पर आपके नाम के लिए तो उन्होंने खाली रखा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ दैट एंड टू एंड सर्विस, दे आर मेकिंग दिस अरेंजमेंट फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जीएसटी आएगा। इन आर व्यू फ्रेंड, ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है जहां पर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं हो रहा है, we can certainly contest that this GST is not applicable in such cases also. However, we have seen that in many other cases, काफी सारे जो क्लाइंट है हमारे, जो एयरलाइन कंपनी वगैरह है, वो टिपिकली कहते हैं कि अगर मैं अभी लाइबिलिटी नहीं भरूंगा एंड अगर मैं कस्टमर से, बिकॉज राइट नो कस्टमर से 3,000 रुपए कैंसिलेशन चार्जेस के साथ मैं जीएसटी भी ले सकता हूँ, अगर मैं आज जीएसटी नहीं लूंगा बाद में लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ मेरे ऊपर आएगी, 18% टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगभग वो 3 गुना हो जाएगा ना, 18 के 54 हो जाएगा। तो जो भी मैंने 3,000 कैंसिलेशन चार्जेस लिया है वो सीधा 1,500 हो जाएगा, बराबर है। प्लस रिस्क ऑफ लिटिगेशन है, हरेसमेंट है, तो इट इज बेटर फॉर मी टू पे दैट अमाउंट एंड दैट द रीजन प्रैक्टिकली यू विल फाइंड मेनी अदर केसेस कैंसिलेशन में एक तो अमाउंट बहुत छोटा होता है या अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो दोनों केस में हमने देखा है कि टिपिकली टैक्स पेयर पे करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आप काफी सारे सर्विस टैक्स वगैरह के जजमेंट अगर आप देखेंगे, इवन लार्जर बेंच का एक जजमेंट आया है प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह के ऊपर। वहां पर प्रीपेमेंट चार्जेस यानी लोन वगैरह फोरक्लोज करते हो, जल्दी पे करते हो, तो वहां पर जजमेंट है स्पेसिफिकली कि टैक्स पेबल नहीं होगा, सर्विस टैक्स पेबल नहीं होगा। और ये लार्जर बेंच का जजमेंट है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रिब्यूनल, दिस इज लार्जर बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल clarifying that service tax is not applicable. In our view, same view can be taken even in GST regime and you can contest that. But obviously आपको अमाउंट वगैरह देखना पड़ेगा, because GST में litigation is certainly costly, not worth fighting for when the amounts are too small. Additionally friends, जब ये कैंसिलेशन वगैरह की हम बात कर रहे थे, या जो आपका हो सकता है कि डिलेड पेमेंट का हो सकता है, यहाँ पर नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि आपका अर्ली टर्मिनेशन हो जाता है रेंटल एग्रीमेंट का, यहाँ पर नेचुरली एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं रेट ऑफ जीएसटी क्या अप्लाई करूं। बिकॉज अगर किसी ने, समझिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑटोमोबाइल कार खरीदा जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 28% प्लस सेस है,
और उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस 10,000 रुपए लेवी किए गए, तो वहां पर रेट ऑफ जीएसटी 18% लगेगा क्या? वो रेट लगेगा जो ऑटोमोबाइल सप्लाई के लिए लगता है। द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड that in such cases the rate of tax is basically the rate which is applicable on the principal supply, because जो भी ये delayed payment है, जो भी ये cancellation है, ये independent service नहीं है, it is taxed to the main service। तो अगर मेन सर्विस के ऊपर 5% टैक्स रेट तो 5%, मेन सर्विस अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है यानी एग्जम्प्टेड है, तो आपको इंसिडेंटल सर्विस यानी डिलेड पेमेंट चार्जेस के ऊपर आपको कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्रिंसिपल सप्लाई है उसके हिसाब से आपको रेट लगाना पड़ेगा। आई होप दिस क्लैरिफाइज मोस्ट ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विडेटेड डैमेजेस जो सर्कुलर में आए हैं। नाउ देयर आर कपल ऑफ अदर पॉइंट्स आल्सो, जैसा आइसक्रीम रिलेटेड। अब सबको पता रहेगा राइट फ्रॉम डे वन, बिकॉज जीएसटी में सप्लाई एक डिबेटेबल पॉइंट था, दूसरा क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा डिबेट वाला पॉइंट है। यहाँ पर जब भी आप आइसक्रीम खाओगे, नेचुरल आइसक्रीम में अगर जाओगे, तो वहां पर डिबेट था कि आर यू गेटिंग गुड्स, यानी कि आपको आइसक्रीम एज गुड्स मिल रहा है कि आइसक्रीम एज सर्विस मिल रहा है। बिकॉज आइसक्रीम एज गुड्स बोला तो 18% जीएसटी है, आइसक्रीम एज सर्विस बोला तो रेस्टोरेंट के हिसाब से 5% जीएसटी विदाउट क्रेडिट। तो ये भी काफी 3-4 साल से डिबेट चल रहा था। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया सर्कुलर के थ्रू 2021 में स्पेसिफिकली, एंड दिस क्लैरिफिकेशन वाज इशूड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, यानी कि जस्ट 6-8 महीने पहले। वहां पर कहा गया कि कोई भी आइसक्रीम पार्लर में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होता है, कोई प्रिपरेशन एक्टिविटी नहीं होता है। आप जस्ट स्कूप निकालते हो एंड स्कूप आइसक्रीम का निकाल के वो पर्सन को देते हो। तो वहां पर इट इज जस्ट अ सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% शुड अप्लाई। यू आर नॉट अ रेस्टोरेंट, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड by way of circular. Now whether you agree or not, that is separate, because even in a restaurant या even in a parlor you get certain ambience, आपको फैसिलिटी मिलता है, आइसक्रीम मिक्स करके मिलता है, उसमें कुछ फ्लेवर डाल के मिलते हैं, वो आपको कोल्ड ही रहना चाहिए, बिकॉज कोल्ड कुकिंग भी एक टाइप का कुकिंग है ना। तो ऐसे काफी सारे आर्गुमेंट ले सकते हो आप, उसके सर्कुलर के आगे भी जा सकते हो। बट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि दिस इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ प्योर आइसक्रीम एज गुड्स रादर देन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, एंड अकॉर्डिंगली GST was clarified as payable at the rate of 18%। बट इसकी वजह से क्या हो गया कि जब ये सर्कुलर 6 अक्टूबर 2021 को आया तो प्रीवियस पीरियड के लिए क्या, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी ने प्रीवियस पीरियड में 5% से जीएसटी पे किया है तो नो प्रॉब्लम, इट शुड बी टेकन एज पेबल एट 5%। तो अगर किसी ने 5% पे किया इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो रिफंड ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम रिफंड वगैरह देंगे नहीं, बट अगर आपने प्रीवियस पीरियड में लोअर रेट से भी पे किया तो नो प्रॉब्लम। But going forward from 6 October 2021, you pay at 18% and you are allowed to take credit। यहाँ पर couple of obviously objection या काफी सारे पॉइंट निकल रहे हैं अभी, जो भी स्पेसिफिक क्लाइंट है हमारे, उनका कहना है कि अगर 5% आप बोल रहे हो एंड विदाउट आईटीसी था, तो आईटीसी के हिसाब से तो हमको आईटीसी भी मिलना चाहिए, फिर तो हमारा रिफंड का केस बनता है, वाइस वर्सा। बट ऑब्वियसली वो केस टू केस बेसिस पे आपको डिबेट देखना चाहिए। हमारा ये मानना है कि इफ देयर इज अ क्लैरिफिकेशन व्हिच इज इन योर फेवर, take benefit of the clarification and move on rather than debating and fighting for the same. Now friends, all of you would be aware that serial number 66 of the notification 12/2017 gives certain exemption, because GST में services का exemption देने वाला जो notification है वो 12/2017 है। उसमें अगर आप serial number 66 पढ़ोगे, वहां पर टर्मिनोलॉजी दी गई, services provided by an educational institution to its students is basically exempted from the ambit of GST। यानी कि कोई भी सर्विस, जो सर्विस है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आपके उसके खुद के स्टूडेंट को दे रहा है तो बेसिकली उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रेज हुए। वन, व्हेन अ सर्विस इज बीइंग गिवन टू बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, नॉट करंट स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टिव, जो बाद में एडमिशन लेने वाला है, बराबर है। तो मैं एंट्रेंस एग्जाम फी उससे ले रहा हूँ, करेक्ट, या मैं कोई एडमिशन रिलेटेड कोई चार्ज ले रहा हूँ, उसका एडमिशन अब तक हुआ नहीं है, तो कोई प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, उसको अगर सर्विस दी तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? एंड सेकंड, कोई स्टूडेंट मेरा स्कूल या कॉलेज छोड़ के जाता है एंड स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, उसके लिए मैं उससे 2,000, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट में उससे ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आता था कि इसके ऊपर जीएसटी पेबल है क्या? बिकॉज दैट पर्सन हैज लेफ्ट द स्कूल, ही इज नॉट अ स्टूडेंट राइट नाउ, ही इज माय एक्स स्टूडेंट, नॉट करंट स्टूडेंट। तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई किया है कि व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट और योर एक्स स्टूडेंट, इन बोथ द केसेस जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, यू वुड बी अवेयर कि कॉटन एंड जीन कॉटन, बेसिकली कॉटन को जब
सीड वगैरह निकाल के जीनिंग वगैरह प्रोसेस के थ्रू उसको जीन कॉटन या बेल्ट कॉटन कहा जाता है कि उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन था कि जो पहले वाला एंट्री था बेसिकली एंट्री नंबर 24B, जहां पर एक एग्जाम्पशन था कि कोई भी इस टाइप का जो कॉटन है उसका अगर आप वेयर हाउसिंग करोगे, अगर आप वेयर हाउस में रखोगे तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या नहीं वेयर हाउसिंग के ऊपर, बिकॉज उस एंट्री में स्पेसिफिकली लिखा गया था रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन। तो बेसिकली रॉ कॉटन यानी जो जीन कॉटन है जो बॉक्स में आपको दिख रहा है इस तरह से जो बांध के रखा है, उसको अगर वेयर हाउस में रखा तो एग्जाम्पशन मिलेगा क्या नहीं स्टोरेज का। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि कॉटन इज कॉटन, बिकॉज आपने उससे सीड निकाला, उसका जीन कॉटन बनाया, बेल्ट कॉटन बनाया, तो दोनों केस में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो अगेन इट्स अ बेनिफिशियल क्लैरिफिकेशन एंड आई थिंक ऑल द पीपल हु टिपिकली आर जीनिंग बिजनेस जो वेयर हाउस वगैरह में रखते हैं उनको लिए तो सर्टनली ये वेलकम क्लैरिफिकेशन है। फ्रेंड्स, एक सीरियल नंबर 9B है जो स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। जब नेपाल एंड भूटान को आप ट्रांजिट कार्गो की सर्विस दे रहे हो तो वहां पर एक एग्जाम्पशन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट फ्रॉम नेपाल, यानी कि कभी कभी वापस आ जाते हैं गुड्स, तो वहां पर भी एग्जाम्पशन मिलेगा क्या। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी पॉजिटिवली क्लैरिफाई किया है कि ये जो एंट्री है इट कवर्स फ्रॉम नेपाल भूटान एंड टू नेपाल भूटान बोथ, यानी कि जाना वहां पर और वापस आना दोनों कवर्ड है। तो अगेन इट्स बेनिफिशियल सर्कुलर, वी कैन टेक इट एट इट्स फेस वैल्यू। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई डिबेट कर सकता है एज अ कंसल्टेंट, जब वर्ड टू लिखा गया है तो फ्रॉम कैसे कवर होगा, बट जब गवर्नमेंट खुद क्लैरिफाई कर रहा है एंड द circulars or clarification on binding on the tax authorities, I think as a tax payer, we should not have any problem to take the benefit of the same because it's a beneficial circular. Friends, all of you would be aware that there is entry 12/2017 का जो नोटिफिकेशन है उसमें सीरियल नंबर 3 है जो एंड 3A है, जहां पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि इफ यू आर अवेयरिंग सर्टन प्योर सर्विसेज, दैट इज यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट, या लोकल अथॉरिटी, और आप कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से प्योर सर्विसेज ले रहे हो सकता है मैन पावर सप्लाई वगैरह आप ले रहे हो, एंड ये जो सर्विसेज जो मैन पावर सप्लायर वगैरह दे रहा है तो वो जीएसटी लगाएगा कि नहीं लगाएगा और कब नहीं लगाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो एंट्री नंबर 3 और 3A वो कहता है कि when the services are pure services and when they are provided to central government, state government, then in such cases exemption is available, but it needs to be covered and it should be in relation to any function entrusted to a panchayat under article 243G and 243W. तो इसके बारे में काफी सारे लोगों ने पूछा था और ये हमने भी रिप्रेजेंटेशन में डाला था कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड वेदर दैट लोकल अथॉरिटी या जो पंचायत का फंक्शन है वो गवर्नमेंट फुलफिल कर रहा है क्या नहीं, बिकॉज वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दे आर सपोज टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो 243W और 243G ये स्पेसिफिकली रेफर करते हैं शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, और जिसमें लिस्ट दिया गया है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, एग्रीकल्चर, वुमेन डेवलपमेंट, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इस टाइप का लिस्ट दिया गया है। So I can ask you an interesting question because we are facing this question for a client. There is a government which is a state government, जिन्होंने क्या किया है, एक जो पूरा बिल्डिंग है, जो हॉस्टल है, वो उन्होंने रेंट पे लिया है एक इंडिविजुअल से। दिस इंडिविजुअल इज इन पुणे और उसने पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को किराए पे दिया है। और ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में बेसिकली ट्राइबल गर्ल्स रहती है, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके लिए है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन ने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है उसने कोई भी जीएसटी लगाया नहीं, बट देन क्वेश्चन था कि उसने जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दिस एक्टिविटी टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्योर सर्विस है, इट इज गिवन टू द गवर्नमेंट, देन द टैक्स अथॉरिटीज ने पॉइंट रेज किया बट गवर्नमेंट को दिया है, बट गवर्नमेंट ये आर्टिकल 243W और 243G के अंदर उसकी एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है कि नहीं, हमको कैसे पता है। तो हमारे हिसाब से एज द टैक्स अथॉरिटीज दे सेड जीएसटी इज पेएबल। नाउ लुक एट द फेट ऑफ द टैक्स पेयर। नाउ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर सेइंग टैक्स पेयर ने डिटरमाइन करना चाहिए कि जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो जो ट्राइबल गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल जो पूरा बिल्डिंग यूज कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन या दायरे के अंदर आता है कि नहीं आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 11 शेड्यूल में स्पेसिफिकली लिखा है सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल। सेकंड अगर आप देखोगे 27 वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 25 में देखोगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
तो नेचुरली जो हॉस्टल है, जो ट्राइबल वुमेन्स के लिए, ट्राइबल गर्ल्स के लिए है, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. So naturally one can easily say that this is exempted, but as a taxpayer, the taxpayer is supposed to understand Constitution also, 11th and 12th schedule also, and also whether this activity covered or not under the ambit of the Constitution, and then only decide whether exemption is available or not. So this is again a tricky area, because काफी बार हम देखते हैं काफी सारे कंसल्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन देखते हैं कि वेदर गवर्नमेंट को मैं सर्विस दे रहा हूँ क्या, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो एग्जाम्प्ट है. बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पहले देखिए प्योर सर्विस है क्या, सीरियल नंबर 3 में, वेदर इट इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट और नॉट. गवर्नमेंट में सही में गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट का कोई दूसरा है, जैसे एमआईडीसी को भी कुछ लोग गवर्नमेंट समझते हैं, विच इज नॉट द केस. थर्ड, whether it is by way of activity in relation to function entrusted to panchayat and municipality, and fourth, whether it is covered under 243G or 243W. ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो. तो जब भी आप टेंडर फाइल कर रहे हो, आपका कोई क्लाइंट है टेंडर फाइल कर रहा है या उसको ऑडिट हो रहा है, तो इस टाइप का एक टेबल आप पक्का बना के रखिएगा, सो दैट आपको बाद में कोई इश्यू ना आए. बिकॉज क्लैरिफिकेशन में सर्कुलर में गवर्नमेंट ने बोला है, या अभी जो आया है उसके पैराग्राफ 7.5 देखोगे, स्पेसिफिकली बोला है कि इफ द functions are not covered under 11th and 12th schedule, then you are not eligible for exemption. यानी सर्कुलर यहाँ पर आपको हेल्प नहीं करेगा. That is what we can say. Let's move ahead now with couple of other points जो important है आप सबके लिए मैं डिस्कस करता हूँ. प्रेफरेंशियल जो लोकेशन है वहां पर काफी बार डिस्कशन किया जाता है कि कोई एमआईडीसी वगैरह में प्लॉट दिया जाता है, तो आपको पता है कॉर्नर प्लॉट का वैल्यू ज्यादा रहता है. तो आपको नॉर्मल प्लॉट अगर सेम एरिया का अगर 3 करोड़ में मिल रहा है, 3 CR में, आपको कॉर्नर प्लॉट लगभग 3.5-4 CR में मिलता है. तो वहां पर जो प्रेफरेंशियल लोकेशन जो चार्जेस होते हैं, जिसको पीएलसी कहा जाता है, लगभग समझिए 75 लाख या 1 करोड़ रुपया अमाउंट है. तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो पीएलसी है, वेदर इट इज अ सेपरेट सर्विस, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी एलोकेशन ऑफ प्लॉट है, वहां पर जो चॉइस ऑफ प्लॉट है कि कॉर्नर का होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, वेस्ट फेसिंग होना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज है, पूल फेसिंग होना चाहिए, वॉट एवर इट इज. तो दिस चॉइस आपको जो मिल रहा है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट प्लॉट इटसेल्फ. इट इज नॉट अ सेपरेट सर्विस, इट इज नॉट अ सेपरेट कंसिडरेशन, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गेट प्लॉट, आपको प्रेफरेंशियल लोकेशन नहीं दिया जा सकता. सो इट इज इंटीग्रली कनेक्टेड विद द मेन सर्विस. एंड अगर मेन सर्विस आपका एग्जाम्प्टेड है, तो जो इंटीग्रल, ये जो एडिशनल अमाउंट है, वो भी एग्जाम्प्टेड हो जाएगा. दैट इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन इज. अगेन दिस इज द बेनिफिशियल क्लैरिफिकेशन. नाउ देयर इज वन ऑब्जर्वेशन, किसी ने कहा है कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर कि वेदर द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. अगर आप में से किसी को भी स्क्रीन विजिबल नहीं दिख रहा है या ऑडियो नहीं आ रहा है, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर. चैट बॉक्स में वगैरह. अच्छा, एलडी पे अभी देखिए, मैं फिर से उसको ये करता हूँ, सॉरी. अभी आई होप इट इज विजिबल नाउ. तो आपने वो टेबल वगैरह देखा था जो हमने डिस्कस किया था, आई होप तब तक दिख रहा था. अच्छा ठीक है, वंडरफुल. नागराज जी, शांतिका, अकिनी जी, अनुराधा जी. एंड डोंट वरी, अगर आपने कपल ऑफ स्लाइड अगर वो लॉक होने की वजह से अगर नहीं दिखे रहेंगे, तो मैं आपको सेपरेटली ये सेशन के बाद ईमेल भी आपको शेयर कर ही देंगे. पीपीटी आपको मिल जाएगा, यानी कि इट वुड बी अवेलेबल. आई विल इमीडिएटली शेयर विद पुणे आईसीएआई, जो आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब तक जो हमने डिस्कस किया, आई वुड लाइक टू आस्क ऑल द पार्टिसिपेंट, अभी तक जो डिस्कस किया उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एनीवन ऑफ यू? मिस्टर पॉल, नागराज जी, शांतिराज जी, अनुरुद्ध जी, त्रिषा जी, मीत जी, अक्षय जी, यश जी, मिस्टर मीत, एनी वन ऑफ यू एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स, किसी को भी कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली? एनी क्वेश्चन? इफ नॉट, वी कैन प्रोसीड. ठीक है, चलिए. लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट. अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10.3 में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है प्लॉट के रिलेटेड कि जीएसटी नहीं लगेगा जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस है. सिमिलरली प्लॉट के रिलेटेड मैं कहूंगा कि और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है. एंड ये क्लैरिफिकेशन का जो रीजन
बैकग्राउंड आप देखेंगे तो उसका एक ही रीजन है कि काफी सारे जो ये है ना क्या कहते हैं कि एडवांस रूलिंग, जिसको एडवर्स रूलिंग कहा जाता है जीएसटी में, तो काफी सारे एडवर्स रूलिंग आए थे सेइंग कि अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदते हो जो डेवलप प्लॉट है, तो बेसिकली डेवलप प्लॉट में जो डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो अगर आपने 25 लाख का कोई प्लॉट खरीदा है जिसमें 22 लाख रुपए प्लॉट का वैल्यू है और 3 लाख रुपए जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस है, बिकॉज उसमें रोड, ड्रेनेज, पाइपलाइन, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ये सब का जो खर्चा आता है 2-3 लाख रुपए, वो जो आपसे लिया जाता है। तो काफी सारे एडवांस रूलिंग आए थे जहां पर कहा गया था ये जो 3 लाख रुपए लिए गए आपसे उसके ऊपर जीएसटी पेबल है, 22 लाख के ऊपर नहीं पेबल है। तो यहाँ पर सर्टनली ये कॉन्ट्ररी जो व्यू चल रहे थे, फिर इसमें किसी ने और भी कपल ऑफ व्यूज अपने एज ए कंसल्टेंट लोग बोल रहे थे कि देन कंस्ट्रक्शन में अबेटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो फॉर्चुनेटली नाउ सर्कुलर 177 हैज क्लैरिफाइड कि अगर आप कोई भी प्लॉट बेचते हो, बराबर है, तो वहां पर जो भी डेवलपमेंट चार्जेस आप ले रहे हो, दिस डेवलपमेंट चार्जेस इज अगेन नॉट अ सेपरेट सर्विस, इट इज नेचुरली इंटीग्रली कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई। और अगर आपका मेन सप्लाई सेल ऑफ लैंड, इफ इट इज एग्जाम्प्ट, इफ इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, तो आपका जो इंसिडेंटल सप्लाई है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली अगर आप देखोगे जो पहले वाला जो पॉइंट था, जो हमने प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के बारे में बात किया, सिमिलरली जो डेवलपमेंट के लिए भी अगर कोई डेवलपर प्लॉट डेवलपमेंट वगैरह करके कोई अमाउंट ले रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि उसके ऊपर भी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि टोटल प्लॉट के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं। आई वुड से इट्स अ वेरी वेलकम क्लैरिफिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेलकम क्लैरिफिकेशन, बिकॉज जो न्यूमरस एडवांस रूलिंग थे, जो एडवर्स रूलिंग थे, उनको इसने आई वुड से इट हैज पुट देम टू रेस्ट। एंड जब भी आपके ऑडिट होंगे, जो भी आपके जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट असेसमेंट जब करेगा, तो दिस काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन विल सर्टेनली हेल्प यू ऑडिट में। अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको पता है कितना challenges create करता है, because they believe that this kind of, earlier they believe that this kind of activities are subject to GST. So now you can क्या रिलैक्स हो सकते हो, बोल सकते हो कि जब भी किसी का प्लॉटिंग का बिजनेस है, डेवलप प्लॉट अगर वो बेच रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा नहीं। आईवीएफ आपको पता है कि बेसिकली जो भी इनफर्टिलिटी रहता है उसको ट्रीट करने के लिए आईवीएफ प्रोसीजर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो आईवीएफ है वो बेसिकली इज इट अ हेल्थ केयर सर्विस, बिकॉज हेल्थ केयर सर्विस ना जीएसटी का जो नोटिफिकेशन है 12/2017 उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। इट सेज दैट इट इज बेसिकली अ सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ और केयर फॉर इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, abnormality और प्रेगनेंसी। तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इलनेस, इंजुरी, डिसीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि भैया वेदर जो इनफर्टिलिटी है वो डिसीज है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट ने इन अ नाइस वे, राइट वे, आई वुड से क्लैरिफाई किया है कि इनफर्टिलिटी इज आल्सो अ डिसीज, इट्स अ एलिमेंट, बिकॉज बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग, जो मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, दे आर सपोज टू क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस। बट अगर इफ somebody is not able to because of certain infertility, any reason, then if he is going for IVF, then it has been clarified this is nothing but a healthcare service, and accordingly it is entitled for exemption. So again, I would say a positive clarification given by the government. Then there are a couple of other clarification. आप सबको पता रहेगा, there are two types of service. One, transportation of passenger and renting of motor vehicle. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या आता है कि कोई रूट, स्टैंडर्ड रूट है, फॉर एग्जांपल आप बानेर से लेके हिंजेवाड़ी तक वो बस जा रहा है, स्टैंडर्ड, हर दिन वो जाता आता रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड रूट। एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल यानी आप एज अ कंपनी वो कार, बस वगैरह जो भी है गाड़ी आप किराए पे लेते हो, एंड आपके लोग आपके ऑफिस में से बैठेंगे, उनको जहां जहां उतारना है वहां पर बस उतार देगा, बराबर है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, बराबर है, जो आपके रूट पे गाड़ी चलता है, आपके इंस्ट्रक्शन पे चलता है, आप जब बोलोगे तब निकलता है, बराबर है। तो बेसिकली यू आर हायरिंग दैट पर्टिकुलर व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप काफी बार देखोगे जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी आईटी कंपनी है, वहां पर सुबह 10 बजे गाड़ी आता है और 5 बजे निकलता है, वो गाड़ी वहीं पर पड़ा रहता है। तो बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप गाड़ी किराए पे लेते हो। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम के लिए गाड़ी किराए पे लेते हो तो वहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि वहां पर आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना है। अगर दूसरा है सिचुएशन, जैसे वो स्टैंडर्ड रूट वाले रहते हैं ना,
वो दिन भर घूमते रहते हैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, और उसमें से आप पासेस रहते हैं, वो कंपनी के लोग को लेके दिया जाता है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा. दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड एंड इट इज द राइट क्लैरिफिकेशन. देन सिमिलर टू दिस ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है, दैट इज अभी दिख रहा है फुल स्क्रीन, बिकॉज एक पॉइंट आया है, किसी ने शेयर किया है कि फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है करके. अभी दिख रहा है फुल स्क्रीन सबको? सुजीत जी, फुल स्क्रीन दिख रहा है सबको, विजिबल? परफेक्ट, थैंक यू किनी जी. So basically, then there is another clarification which talks about transportation of passengers, जो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है. यहाँ पर अगेन सेम है कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहता है कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन में आपके लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आप लोग बैठ रहे और उतर रहे कहीं पर, स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट है. तो जहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहे हो नॉन एसी बसेस है, वहां पर एग्जाम्पशन अवेलेबल है. बट जहां पर भी आप रेंटिंग की सर्विस ले रहे हो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. बराबर है? तो व्हेनेवर द एक्टिविटी दैट इज यू आर गेटिंग अ व्हीकल फॉर रेंट एंड दैट रेंट इज बेसिकली यू आर हायरिंग अ व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन एग्जाम्पशन इज अवेलेबल. बराबर है? अगर आप कोई पॉइंट ए पे बैठ के पॉइंट बी पे उतरने का अगर आपने पास वगैरह लिया है और समथिंग लाइक दैट एंड इट्स अ नॉन एसी कैरेज, देन एग्जाम्पशन इज अवेलेबल. अगर आपने पीरियड के लिए बेसिकली सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक या 6 बजे तक गाड़ी रहेगा इधर, हमारे एम्प्लॉय चढ़ेंगे, हमारे एम्प्लॉय उतरेंगे, तो इस टाइप का कंडीशन है, आपके कंट्रोल में अगर व्हीकल है तो वहां पर वो रेंटिंग करके क्वालिफाई होगा और वहां पर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. तो राठी जी ने एक क्वेश्चन किया, प्लीज क्लैरिफाई विद डेवलपमेंट ऑफ लैंड इंक्लूड क्लब हाउस, जिम, प्लेग्राउंड. तो यहाँ पर मिस्टर राठी प्लीज नोट करिएगा, सी जो भी टर्मिनोलॉजी जो भी आप यूज करिएगा डेवलपमेंट में, वॉट एवर इज द डेवलपमेंट, सी बेसिकली व्हेन यू आर बाइंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, तो अज्यूम करते हैं भुगांव में एक डेवलपमेंट का स्कीम चल रहा है, वहां पर आप प्लॉट लेना चाहते हो, कीमत है 60 लाख रुपए, 60 लाख. तो वहां का डेवलपर बोलता है सर 55 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ प्लॉट का, 5 लाख रुपए ले रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? जिम आएगा, स्विमिंग पूल आएगा, प्लेग्राउंड आएगा, क्लब हाउस आएगा, इसका मैं 5 लाख रुपए ले रहा हूँ. तो यहाँ पर प्लीज नोट करिएगा, आप उसको बोल सकते हो क्या कि 60 लाख में यार प्लॉट बहुत महंगा है, तो मुझे सिर्फ 5 लाख में ना डेवलपमेंट चार्जेस दे दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? यानी 55 लाख के साथ 5 लाख रुपए आपको, इट्स अ बंडल, इट्स इंट्रिंसिकली कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई, इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट सप्लाई. तो भले वो 5 लाख रुपए आपको अलग नाम से ले, प्लेग्राउंड, जिम, व्हाटएवर, क्लब हाउस, कोई भी नाम से ले ले, हमारा ये व्यू है कि टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज 60 लाख के ऊपर. तो ड्रेनेज चार्जेस लो आप उसको कह के डेवलपमेंट के लिए, या कोई भी अमाउंट लो, तो व्हेन यू आर बाइंग अ प्लॉट आप नाम कुछ भी दे दो ना, चलेगा, नाम कुछ भी दे दो, आप क्लब हाउस के लिए ले लो या ड्रेनेज के लिए ले लो या इलेक्ट्रिसिटी के लिए ले लो, इट इज यू आर नॉट taking that amount basically for a separate supply. That supply is intrinsically connected with the main supply. You are getting plot of land जिसका main value है, ये तो incidental है, और incidental supply आप independently खरीद भी नहीं सकते. तो प्रीतम मौर्य ऐसा कह नहीं सकता कि यार मैं 55 लाख मेरे पास नहीं है प्लॉट खरीदने का, मुझे सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस 5 लाख में दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड दैट द रीजन ये सर्कुलर जो आया है जहां पर कहा गया है कि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं है, डेवलपमेंट जो होता है ड्रेनेज का वगैरह, पाइपलाइन का वगैरह, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है. तो हमारे ये भी व्यू है कि जो भी क्लब हाउस वगैरह अगर आपके लिए अमाउंट चार्ज कर रहे हो, प्लॉट जब खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा नहीं. बराबर है? आई होप मिस्टर राठी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया. मिस्टर राठी, लेट मी क्लैरिफाई, अगर आप कोई ये लेते हो, फ्लैट खरीदते हो, बराबर है, कोई सोसाइटी वगैरह में, तो वहां पर जीएसटी आपको अप्लीकेबल होगा, आपको पता है 1% या 5% के हिसाब से. तो वहां पर नेचुरली जो भी डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह जो भी लिए जाएंगे आपसे, तो 1% या 5% जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. आई होप मिस्टर राठी दिस क्लैरिफाइज द पॉइंट व्हिच यू आर रेज्ड. फ्रेंड्स, एक स्पेसिफिक एंट्री है नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में, जहां पर सीरियल नंबर 3VF करके, जहां पर इफ यू आर प्रोवाइडिंग, इफ समबडी इज प्रोवाइडिंग अ कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है कोई भी यूनिट का फॉर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज अ फूड स्टफ एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक बीवरेज,
यानी कि लीकर वगैरह का फैक्ट्री है तो उसको कवर नहीं किया है, बट अगर आपका मिल फैक्ट्री वगैरह है तो वो अगर आपको कोई सेटअप करके दे रहा है ना, आपके में से काफी सारे लोग हो सकते हैं जो आपके क्लाइंट मिल्क फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, डेयरी प्लांट वगैरह जो सेटअप करना चाहते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो भी डेयरी प्लांट है उसके लिए 12% जीएसटी का रेट लगेगा। बिकॉज यहाँ पर कपल ऑफ जो जीएसटी अथॉरिटीज है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, डेयरी प्लांट जो होता है ना वो बेसिकली कुछ पाइपलाइन रहती है और कुछ मशीनरीज रहती है, तो उन पाइपलाइन और मशीनरीज को नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। तो टैक्स अथॉरिटीज का ये मानना था कि ये जो नट बोल्ट और जो प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको आप मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो दिस इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ये जो पूरा प्लांट है इसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ये जो पूरा प्लांट है उसको आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते ना। तो ये जो पूरा प्लांट है, ये डेयरी प्लांट जो है, दिस इज नथिंग बट इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जब भी आप कोई डेयरी प्लांट सेटअप कर रहे हो तो वहां पर जो कंसेशनल रेट है 12% का वो आपको अप्लीकेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज व्हाट हैज बीन क्लैरिफाइड अंडर दिस क्लैरिफिकेशन एट पैरा 17.1. So again, I would say a welcome clarification from government. Up tak any additional question? Can you please share? It is helpful for builder developer video. मुझे HSN कोड तो अभी याद नहीं है, बट स्पेसिफिकली देखते बाद में अगर अपने को मिला तो मैं बात करता हूँ। आई डोंट नो यानी कि वाई ये स्पेसिफिक, बिकॉज HSN वगैरह तो याद रहने चला किसी भी स्पीकर को नहीं है। तो अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए, आपको सबको पता रहेगा कि न्यूज एंकर्स जो होते हैं वो न्यूज टीवी के डिबेट जो है ना उसको होस्ट करते हैं। वहां पर काफी सारे गेस्ट एंकर आते हैं और वो गेस्ट एंकर आपने देखे रहेंगे काफी सारे टीवी शोज में ना रेगुलरली एक दो तो फिक्स रहते हैं, यानी कि कुछ भी हो गया ना तो वो एंकर के साथ वो जो गेस्ट एंकर है वो भी आना ही फिक्स है, वो आने ही वाला है। तो उस पर्सन को ना एक अमाउंट दिया जाता है, वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है एवरी अपीयरेंस के लिए। हो सकता है कि 10,000, 20,000, 25,000, कपल ऑफ लैक्स, तो पर अपीयरेंस को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि बेसिकली ये जो जर्नलिस्ट वगैरह है जो अपीयरेंस कर रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी लगेगा कि नहीं ये ऑनरेरियम पे। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी में टिपिकली एवरी सप्लाई इज लायबल टू जीएसटी अनलेस इट इज एग्जम्प्टेड। इस टाइप के गेस्ट जो एंकर्स है उनके लिए कोई एग्जम्पशन है नहीं। अगर इनका 20 लाख या जो भी रहेगा अमाउंट 10 लाख उसके ऊपर अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर अमाउंट इनकम है, then automatically they have to register for the purpose of GST and pay GST on the same. यहाँ तक अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन? If not, we can proceed further. ई इनवॉइसिंग रिलेटेड एक पॉइंट है, आगे भी हम ई इनवॉइसिंग का एक डिस्कशन करने वाले, बिकॉज 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जस्ट बिकॉज ये पॉइंट हमने काफी सारे क्लाइंट में एंड काफी सारे जगह देखा है कि इसके बारे में बहुत डिबेट होता है। और इसका इशू क्या हो जाता है कि देयर आर मेनी एंटिटी जिनका 20 करोड़ या 10, जो अभी गोइंग फॉर 10 करोड़ या पहले 50 करोड़ और 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था, लेकिन ये लोग ना आपको ई इनवॉइस नहीं देते, जैसा बैंक हो सकता है, बराबर है, वो आपको ई इनवॉइस नहीं देता, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, बिकॉज उनको एग्जम्पशन है। तो उसकी वजह से रिसिपिएंट को ना डाउट हो जाता है कि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लूं क्या नहीं लूं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी का टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर है, बेसिक थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रहा है, 1 अक्टूबर से वो थ्रेशोल्ड 10 करोड़ का हो जाएगा, हो सकता है कि 1 जनवरी के बाद वो थ्रेशोल्ड 5 करोड़ का हो जाएगा, और उसके बाद तो 1-1.5 करोड़ के ऊपर आपको ई इनवॉइसिंग या कंपल्सरीली ई इनवॉइसिंग हो जाएगा, बराबर है, वो तो आगे वाली बात है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आपका टर्नओवर बेसिक थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रहा है ई इनवॉइसिंग के लिए उसके अगर ऊपर है, so naturally you are supposed to issue an invoice, and in that invoice the government is saying you have to specifically mention that we are not required to prepare invoice in terms of 48 sub clause 4, that is in accordance with e-invoicing regulations, because e-invoicing में आपको IRN नंबर कंपलसरी है, बराबर है, आपका QR कोड होना कंपलसरी है। तो अगर आपके इनवॉइस पे QR कोड नहीं है तो आपको ये डिक्लेरेशन कम से कम होना चाहिए, अगर वो टैक्सपेयर लार्ज टैक्सपेयर है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। तो दिस इज अगेन वेलकम स्टेप। आपको जो डाउट होता था अलग अलग लोगों के लिए, वो मुझे लगता है कि जो इनवॉइस पे क्रेडिट लेना है कि नहीं, वो मुझे लगता है कुछ हद तक एड्रेस हो जाएगा यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कपल ऑफ नोटिफिकेशन। अभी तक हमने सर्कुलर्स के बारे में डिस्कस किया, नाउ अभी हम नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मेजरली अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन में चेंज हुए हैं, मोस्ट ऑफ द चेंजेस या मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आई वुड से दे आर बेसिकली नेसेसरीली विथ रिस्पेक्ट टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर आप देखेंगे,
जो रोड के कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट है, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर जो जीएसटी रेट था पहले 12% हुआ करता था स्टैंडर्ड, उसको इंक्रीज करके अभी 18% कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आपका कोई भी क्लाइंट जो है, बराबर है, आपका कोई भी क्लाइंट है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डील करता है, तो आप सबके लिए सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट चेंज है। बिकॉज प्लीज नोट करिएगा, रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले हमने एक क्लाइंट का इनवॉइस देखा, तो वहां पर वो अभी भी 12% लगा रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस चेंज। तो प्लीज चेक करिएगा आपके जो भी क्लाइंट है वहां पर ये जो 12 से 18% चेंज हुआ है, whether that is change is being implemented or not in your client location. That is one. Second important thing is, आप सबके जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डील करने वाले क्लाइंट रहेंगे, वो अलग अलग टेंडर्स को बीड करते हैं। तो प्लीज कम्युनिकेट करिएगा आपके क्लाइंट के साथ कि जो भी टेंडर टीम है, जो भी बिडिंग वाला टीम है, उनको ये बताइएगा कि अभी गोइंग फॉरवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट के केस में जीएसटी का रेट, जो भी रोड कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, मेट्रो रेट, जो भी 12% तो अभी 18% हो चुका है। तो जो भी बिडिंग करना है, एंड काफी सारी जगह अभी बिडिंग कैसा हो गया, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक टोटल प्राइस आपको देना है गवर्नमेंट को, तो जीएसटी वगैरह वो सब आपका सर दर्द है। तो वहां पर जो भी बिडिंग टीम है उनको याद से बता दीजिएगा कि जीएसटी के रेट चेंज हुए हैं। ऑब्वियसली आपको पता रहेगा फैक्ट ऑफ द क्लाइंट, तो उनको प्लीज स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना ये जरूरी है। तो ये रोड ब्रिज के जो रेट है 12 से 18 का हो चुके हैं। सिमिलरली जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के लिए करते थे, कैनल का कंस्ट्रक्शन है, डैम का है, हॉस्पिटल का है, पाइपलाइन का जो है, जो 12% हुआ करता था उसको अगेन गवर्नमेंट ने 18% कर दिया है। यहाँ पर ये भी जो प्रीवियस स्लाइड है, ये स्लाइड भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पर ना एक टैक्स रेट चेंज क्लॉज होता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने टेंडर फाइल किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट के साथ है, वहां पर अगर टैक्स चेंज रेट क्लॉज है, देन यू कैन इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 12 to 18%। अगर आपका टैक्स चेंज रेट क्लॉज नहीं है, तो बहुत बार आप अगर न्यू रेट से इनवॉइस रेज करोगे, तो आपका जो बिल है वो बेसिकली अटक जाएगा, आपका बिल पास ही नहीं होगा। तो प्लीज आपके जो भी क्लाइंट रहेंगे उनसे बात करके समझ लीजिएगा कि ऐसा स्पेसिफिकली क्लॉज, उनके टैक्स चेंज रेट क्लॉज या अप्लीकेबल जीएसटी रेट का क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि नहीं, जो भी गवर्नमेंट के साथ है। अगर नहीं है तो उनके ऊपर, खुद के ऊपर, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर 6% का एडिशनल बर्डन आ सकता है। हमारे क्लाइंट है जिन्होंने इंक्लूसिव बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया था, तो उनके लिए तो सर्टन ये जो 6% का बर्डन है उनके खुद के जेब पे आया है एडिशनल बर्डन। तो यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। जहां पर इंक्लूसिव क्लॉजेस है वहां पर आपके टैक्स पेयर का 6% का बर्डन बढ़ गया है। एडिशनली फ्रेंड्स, आप सबको पता रहेगा जो भी अर्थवर्क जो सर्विसेज थे, जहां पर सब कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप देखोगे 5% का रेट लगता था, वहां पर भी 5% से अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया रेट 12%। और हमारा ये मानना है हो सकता है कपल ऑफ डेज के बाद इवन इसको 12 से 18 कर दिया जाएगा। बिकॉज द थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली टू एंश्योर कि जितने भी टैक्स, जो भी सर्विसेज एंड गुड्स अभी 5 साल के बाद, अभी सभी लगभग 18% में आ जाने चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक इज द थीम। बिकॉज आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ऑलमोस्ट एवरी मीटिंग के बाद में रेट इंक्रीज ही हुए हैं। बहुत ही हैंडफुल एग्जाम्पशन है जिनको दिया गया है, रादर जो भी एग्जाम्पशन है उनको निकाला ही जा रहा है। कोई भी एग्जाम्पशन जो जेन्युइन भी है उनको भी नहीं रखा जा रहा। और अभी हम देखेंगे कितने जेन्युइन एग्जाम्पशन उनको भी कैसे निकाला जा रहा है। होटल रूम, आपको पता रहेगा काफी अभी डॉर्मेट्री जो कल्चर है, यंग लोग जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज में रहते हैं, हॉस्टल वगैरह, जहां पर टिपिकली जो पर डे चार्जेस है वो काफी रिजनेबल रहता है, 800-900 रुपया। तो वहां पर जो जीएसटी था पहले एग्जाम था, अभी गवर्नमेंट को जैसे पता चला अरे यंग जो क्राउड है वो होटल में जो 1000, 2000, 5000 वाला जो रेट है वहां नहीं रहता है, बट हॉस्टल वगैरह जो अलग अलग डॉर्मेट्रीज है वहां पर रहता है, एंड काफी गुड उनका रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जो स्मॉलर होटल्स है जहां पर 1000 रुपीज से भी कम प्राइस है, वहां पर भी हम जीएसटी लगाएंगे। और गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर अभी 12% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो प्लीज नोट करिएगा पहले एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ पर प्लीज नोट करिएगा सिर्फ होटल रूम जो है वहीं पर जीएसटी लगेगा। आप सबको पता रहेगा कि जो रिलीजियस प्रीमाइसेस होते हैं वहां पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है, दैट एग्जाम्पशन इज कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 13। वहां पर एक स्पेसिफिकली रेंटिंग ऑफ रूम का 1000 रुपीज और मोर जो रहेगा वहां पर अभी भी एग्जाम्पशन है, यानी कि 1000 या उससे कम अगर रेट है तो जीएसटी का एग्जाम्पशन अभी भी रिलीजियस प्लेसेस में है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस्कॉन टेम्पल है या जो बालाजी टेम्पल है, वहां पर अगर आप रहने के लिए जाते हो, वहां पर 600-500 रुपया का अमाउंट है, तो उनके लिए अभी भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। वहां पर अगर आप एलिजिबल हो चुका है, सरप्राइज
सरप्राइजिंगली जो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा सरप्राइज था इस 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो अमेंडमेंट आया है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ बिजनेस एंटिटी, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया है। सरप्राइजिंगली अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है वो मैं बिजनेस एंटिटी यानी रजिस्टर्ड पर्सन को दूं या मैं किसी इंडिविजुअल को दूं, दोनों केस में मेरा रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का एक ही यूज है, यानी कोई रहने के लिए यूज करने वाला है सर्विस टैक्स रेजिम में। एंड अभी रिसेंटली जीएसटी रेजिम में भी पहले 5 साल कभी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं था। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि जब भी कोई कंपनी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे लेता है, बराबर है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी है, जब वो प्रॉपर्टी किराए पे लेता है तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जीएसटी इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट चेंज। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक वन ऑफ द रीजन आई कैन शेयर विथ यू, कपल ऑफ आवर क्लाइंट्स है जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो उन्होंने किराए पे लिए है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वहां पर जो अगर आप देखेंगे जो एंट्री है, आई विल जस्ट रीड दैट एंट्री फॉर यू, जो रिवर्स चार्ज वाली एंट्री है ना, आई विल जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको इसके आगे दिखेगी। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग इफ रेसिडेंट ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि व्हाट इज जो रेसिडेंशियल रेंटिंग जो है, बराबर है, जो रेसिडेंशियल रेंटिंग है जो प्रीमाइसेस है रेसिडेंशियल, वो समझिए अगर कोई पर्सन बिजनेस पर्पज के लिए ऑफिस के लिए यूज करता है तो क्या, यहाँ पर प्लीज नोट करिए, वैसे केस में भी उस सिचुएशन में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा रिवर्स चार्ज में। बिकॉज मिस्टर यश अगर आप टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, टर्मिनोलॉजी क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे दिया तो वो कमर्शियल के लिए पर्पज के लिए यूज करे या रेसिडेंशियल। गवर्नमेंट का मानना है कि दोनों केस में रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में पे करना है, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है, रिवर्स चार्ज में पे करना है। तो बेसिकली आप देखोगे गवर्नमेंट ये मान रहा है यहाँ पर मिस्टर यश कि अगर कोई कंपनी कोई फ्लैट किराए पे लेता है तो गवर्नमेंट का मानना है कि भैया वो कमर्शियल पर्पज ही है, वहां पर उसके डायरेक्टर रहे कपल ऑफ दिन के, कपल ऑफ एम्प्लॉय रहे, टेम्पररी अकोमोडेशन करके यूज करे, गेस्ट हाउस करके यूज करे, जो भी आपको करना है करे, वो गवर्नमेंट मान रहा है कि कमर्शियल पर्पज ही है। एंड दैट द रीजन अगर आपको इस एंट्री के बाहर आना है, आपको जीएसटी पे नहीं करना है, आपको 18% का कॉस्ट नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पर काफी सारे टैक्स पेयर मुझे लगता है कि इन डेज टू कम दे माइट ट्राई टू डू अ टैक्स प्लानिंग। वो कहेंगे कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है ना, मेरा डायरेक्टर मेरा एम्प्लॉय डायरेक्टली उसके नाम पे एग्रीमेंट बना देगा, कंपनी उसके नाम के साथ यानी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि नहीं, डायरेक्टली ही विल पे, डायरेक्टली ही विल एंटर इनटू एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी वुड नॉट बी पेएबल। बट यहाँ पर प्लीज नोट करिएगा, वो डायरेक्टर वो एम्प्लॉय अगर बाद में कंपनी से रीइंबर्समेंट लेगा सेम अमाउंट का, तो यहाँ पर सर्टनली जीएसटी अथॉरिटीज पॉइंट रेज करेंगे कि जस्ट टू इवेट टैक्सेस, जस्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यू आर डन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और आपका तो रिलेटेड पार्टी, एम्प्लॉय को तो रिलेटेड पार्टी माना जाता है, सो दे मे नॉट एग्री विद दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल, बिकॉज मैंने काफी जगह पर देखा कि काफी सारे कंसल्टेंट ऐसा कह रहे कि इंस्टेड ऑफ कंपनी अभी आप एग्रीमेंट चेंज कर दो और एम्प्लॉय के नाम पे डाल दो। ऑब्वियसली उसमें काफी सारे कमर्शियल भी पॉइंट आते हैं, बिकॉज मल्टीपल एम्प्लॉयज रहते हैं, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ गेस्ट हाउस, नॉट पॉसिबल टू चेंज दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट। बाद में एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो क्या हर बार में थोड़ी एग्रीमेंट चेंज करते बैठूंगा, तो काफी सारे प्रैक्टिकल उसमें इश्यूज आते हैं। तो वी डोंट थिंक सो दैट दिस इज परमिसिबल और प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड ऑब्वियसली लिटिगेट होगा कोई करेगा तो। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा वहां पर, बिकॉज रिवर्स चार्ज में तो मुझे पे करना है। टिपिकली अगर आप देखोगे, और हमने काफी जगह देखा है, सरप्राइजिंग है क्यों पता नहीं, हर जगह ना लोग क्या करते हैं कि रिवर्स चार्ज में कोई भी अमाउंट पे करते, इवन वो मोटर व्हीकल के लिए इमीडिएटली क्रेडिट ले लेते हैं, आईटीसी भी इमीडिएटली मिल जाएगा। पहले रिवर्स चार्ज में पे करो, आईटीसी अवेलेबिलिटी के लिए आपको सेक्शन 17 में जाना है। तो पहले तो समझते हैं कि आपको कौन से वैल्यू पे पे करना है, बिकॉज मिस्टर अक्षय ने एक रिलेवेंट पॉइंट पूछा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहा हूँ तो वैसे केस में मुझे रिवर्स चार्ज पे करना है क्या नहीं, बराबर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर। तो यहाँ पर प्लीज नोट करिएगा, हमारा ये मानना है
कि जब भी आप कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे ले रहे हो, समझो वहां का रेंट है 50,000 रुपये पर मंथ एंड वहां के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है 3,000, तो 53,000 आप पे कर रहे हो। तो रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी 53,000 पे भरना है, बिकॉज इट इज अ बंडल सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए इंडिपेंडेंट सप्लाई। आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी लोगे वहां पर, एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला तो आप घर लोगे ही नहीं। कोई लेगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला? पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो इसके लिए आप टिपिकली व्हेन यू आर टेकिंग अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, 50,000 इज फिक्स रेंट, 3,000 इज वेरिएबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग, बराबर है, कम ज्यादा होगा। तो आप जब जीएसटी पे कर रहे हैं आपके क्लाइंट के केस में, ध्यान से पे करिएगा टोटल अमाउंट पे, नॉट ओनली ऑन द रेंट अमाउंट बट ऑल्सो ऑन द इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट। ध्यान से आपको याद रखना है, बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करने वाले हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट पे जीएसटी पेएबल हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट अभी यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया। अभी अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई किराए पे लेता है तो क्या, एंड अज्यूम करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी एक मिस्टर ए से लिया गया है, कंपनी ने लिया है, शॉप लिया है किराए पे, प्रॉपर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एंड मिस्टर ए का जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपए है इंक्लूडिंग रेंट, तो ही इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। तो वहां पर मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है क्या? अगर आप टर्मिनोलॉजी देखोगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सिर्फ उसको ही कवर किया है। बाकी जो भी प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी शॉप वगैरह को, उसको इस रिवर्स चार्ज की एंट्री में गवर्नमेंट ने कवर नहीं किया है। ये जो आपका पॉइंट है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट कंसिडर करेगा और बोलेगा कि अगर कोई भी पर्सन से आप कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हो, तो आपको रिवर्स चार्ज भरना है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो। ये भी पॉसिबल चेंज हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, बट राइट नाउ एज ए टुडे द अमेंडमेंट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। उतना आपको याद रखना है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। और ये जो भी हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू, आई होप यू नो दैट दीज अमेंडमेंट आर इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2022। अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसके रिलेटेड कोई पॉइंट है? एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? मिस्टर अक्षय, यश, अनिश अग्रवाल जी, क्षितिज जी, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एनीवन ऑफ यू? अगर है तो हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन प्रोसीड। अभी मिस्टर अक्षय, यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है क्या कोई कमर्शियल है? उसके लिए ना बेसिकली लॉ, जीएसटी लॉ के अंदर कोई भी गाइडेंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है ना आपका यूसेज से ज्यादा आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको आपने क्या कहा है, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बताना पड़ता है कि आपका कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल, आपको पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना पड़ता है कि आपका रेसिडेंशियल है क्या कमर्शियल है। वो बेसिस पे मुझे लगता है आपने डिसाइड करना चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है क्या कमर्शियल। आई होप मिस्टर अक्षय आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन कि रादर देन यूज आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड क्या कहता है। आई थिंक दैट इज द राइट क्राइटेरिया, बिकॉज कितने सारे लोग हैं। और मिस्टर अक्षय एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद जब प्रैक्टिस चालू किया 2012 में, आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2005 एंड 2012 में प्रैक्टिस मैंने घर से चालू किया। मेरे घर पे ही मेरा टेबल था और ये चेयर था, तो वहीं पर मैंने लगभग 1 साल प्रैक्टिस वहां से चालू किया था। तो वैसा तो एक रूम लगभग आप बोल सकते हो ऑफिस ही था, बराबर है, बट वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एमएससीबी वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी भी रेसिडेंशियल है, तो हम तो कहेंगे कि रेसिडेंशियल ही है वो, करेक्ट। तो उस तरह से आपको चेक करना चाहिए। अगर आप कमर्शियल यूज के लिए जैसा कोई ऑफिस करके यूज कर रहा है लेटेस्ट से, बिकॉज सी आईटीसी मिलेगा क्या नहीं उसका भी हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। 17(5) स्वाति जी का एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है ना, 17(5) में उसने बोला है पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई चीज करते हो, गुड्स या सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। कि पहले आपने को समझना चाहिए पर्सनल कंजम्पशन इस वर्ड को जीएसटी लॉ में डिफाइन किया है क्या? नहीं किया है। व्हाट इज पर्सनल कंजम्पशन? पर्सनल कंजम्पशन इज इट क्वा अ पर्सन, यानी कि पर्सन ने कंज्यूम किया इसके पर्सनल है क्या? जैसा फूड, फूड पर्सन ने कंज्यूम किया इसके लिए पर्सनल है क्या? लेकिन वही फूड अगर मैं कोई क्लाइंट मीटिंग में खाया तो मैं कहूंगा यार वो थोड़ी पर्सनल है, वो तो ऑफिशियल है ना। ऑफिशियल लंच था हमारा, जब तक मैं क्लाइंट के साथ ऑफिशियल लंच पे नहीं जाऊंगा तब तक काम थोड़ी मिलने वाला है। तो इट इज नथिंग बट ऑफिशियल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इंटरनेट,
इंटरनेट जो ऑफिस का है वो कौन यूज कर रहा है, टेलीफोन कौन यूज कर रहा है, पर्सन ही यूज कर रहे हैं ना वैसे देखेंगे तो उसको आप पर्सनल मानेंगे क्या आप उसको ऑफिशियल मानेंगे। तो सिमिलरली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की केस में भी ये सेम क्वेश्चन आने वाला है कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे लिया और वहां पर अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल रह रहे डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह, तो वो पर्सनल है क्या वो रेसिडेंशियल है। अगर आप मुझे पूछेंगे पर्सनल है क्या क्या है, तो मैं कहूंगा उसको 2 पॉइंट पे आप स्प्लिट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट एग्री करेगा, हमारा ये मानना है कि अगर वो परमानेंट रेसिडेंस है, परमानेंट यानी कि एक एम्प्लॉय वहां पर महीनों महीनों रह रहा है, तो हमारा ये मानना है कि दैट इज पर्सनल कंजम्पशन, वहां पर आपको क्रेडिट ना मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि यू विल नॉट गेट द क्रेडिट। सेकंड, अगर आपका कोई गेस्ट हाउस है जहां पर लोग टेम्पररी आते हैं 10-12 दिन, फिर वो नया फ्लैट ढूंढ लेते हैं, अपना अपना खर्चा करके वहां रहते हैं, तो वहां पर हमारा ये मानना है दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिकॉज यहाँ पर कोई भी पर्सन एक कंटिन्यूअसली नहीं रह रहा है। बिकॉज अगर उसकी जगह मैं होटल में भी बुक कर सकता था, हो सकता है कि मेरे ऑफिस के बाजू में ली मेरिडियन है, ताज है, या कोई भी छोटा मोटा अगर अच्छा होटल रहता वहां मैं बुक करता तो उतना खर्चा आता, बिकॉज यहाँ पर तो मेरा पर एनम जो खर्चा है उतना मेरा होटल का भी बिल हो सकता है। तो दैट द रीजन, अगर मुझे होटल के जो रहने के खर्चे, महाराष्ट्र में मेरा रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र में अगर मैं कर रहा हूँ खर्चा, तो वहां पर इफ आई कैन कंटेन दैट इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, हमारे हिसाब से आपका जो गेस्ट हाउस है उसके लिए भी आप ये सेम कंडीशन ले सकते हो। लेकिन प्लीज नोट करिएगा, व्हाट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, बेसिकली आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि अमाउंट कितना है। अगर आपका टोटल रेंट समझिए 10 लाख रुपया है, वहां पर जीएसटी का अमाउंट आ रहा है 1,80,000 रुपया, तो हम कहेंगे कि नॉट वर्थ लिटिगेटिंग फॉर, बिकॉज छोटा अमाउंट है, 1-2 लाख रुपए जो है ना आपका लिटिगेशन का ही खर्चा होगा, ट्रिब्यूनल तक जाते जाते ही आपका 1,00,000-2 लाख हो जाएगा। सो इट इज नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर, सो इट इज बेटर यू डोंट क्लेम द क्रेडिट, दैट इज व्हाट वी कैन सजेस्ट। जहां पर 3-5 लाख 5-10 लाख बड़े अमाउंट है, वहीं पर आप लिटिगेशन करिएगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर, जब भी हम इतने सारे लिटिगेशन देखते हैं तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या लिटिगेशन का कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है। सो इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू लिटिगेट, बिकॉज आपके क्लाइंट को बाद में पिंच करेगा और फिर बोलेगा कि एज अ टैक्स कंसल्टेंट आपने कैसा पोजीशन दे दिया, 2 लाख के लिए तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए लिटिगेशन का खर्चा कर चुका हूं। सो दे विल क्वेश्चन यू एट अ लेटर स्टेज, अभी उनको नहीं पता चलेगा। दैट द रीजन, एज अ ट्रांसपेरेंट प्रोफेशनल यू नीड टू टेल दिस अपफ्रंट टू द क्लाइंट कि सर छोटा अमाउंट है इसके लिए पे करते एंड क्रेडिट नहीं लेते, अगर बड़ा रहता देन वी कुड हैव टेकन अनदर व्यू, है ना, लिटिगेट भी कर सकते थे। आई होप स्वाति जी आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, अक्षय जी आपके भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन है? प्रियंका जी, सुजीत जी, यश, एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, यहाँ पर प्रियंका जी का क्वेश्चन है। प्रियंका जी, हमारे हिसाब से अगर कमर्शियल मीटर इंस्टॉल है और एमएससीबी को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी करके, तो वहां पर हमारा व्यू है कि वो कमर्शियल बिलिंग है, वो रेसिडेंशियल नहीं है करके, बिकॉज आपके पीएमसी रिकॉर्ड से इलेक्ट्रिसिटी के रिकॉर्ड बताएंगे कमर्शियल है क्या रेसिडेंशियल है। आई होप दिस क्लैरिफाइज। अगर किसी के कोई काउंटर व्यू भी है, बिकॉज काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं एंड आई नो कपल ऑफ देम मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन जीएसटी, they would have discussed this kind of point with their client also, या आपके प्रोफेशनल कलीग के साथ भी आपने बात किया रहेगा, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड योर व्यू एज वेल। आपको भी लग रहा है कोई काउंटर व्यू है, कुछ पॉइंट डिस्कस करना है, तो वी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द सेम। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप चैट बॉक्स में वगैरह शेयर करिएगा जो भी पॉइंट आपके हैं। ऑफिस अगर आपका रेसिडेंशियल सोसाइटी है और इलेक्ट्रिसिटी मीटर कमर्शियल है, तो हमारा मानना है कि एक बार आप एमएससीबी या आपका पीएमसी यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर एक बार आप बता देते हो कमर्शियल है, तो हमारे हिसाब से वो कमर्शियल ही प्रॉपर्टी है, वो रेसिडेंशियल नहीं रहता है। बिकॉज कमर्शियल को प्लीज नोट करिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स काफी ज्यादा रहता है, डबल टिबल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी डबल टिबल रहते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं। तो कोई भी खुशी खुशी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल नहीं करता है, जीएसटी बचाने के लिए तो पक्का नहीं करेगा, बराबर है। तो यू हैव टू गो बाय द पीएमसी एंड इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड, दोनों चेक करिएगा, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही मैं कहूंगा कि नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड था, ऐसा गवर्नमेंट ने एक एंट्री लाया है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल कराया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट मुझे लगा ये एंट्री। टैक्स पे करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी वन ऑफ अस इज पेइंग जीएसटी, बट ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है एंट्री, बहुत ज्यादा फील करवाता है निगेटिव।
This entry is basically saying services provided by a clinical establishment by way of providing room other than ICU, CCU, etc., but having room charges exceeding 5,000 per day to a person receiving healthcare service would be liable to GST at the rate of 5% without ITC. तो पहली बार and most important thing is basically government is saying जो भी आपके हॉस्पिटल है उनको जीएसटी पे करना है. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल में खुशी खुशी नहीं जाता है, बीमार है. और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो 5,000 10,000 रुपए चार्ज करते हैं उसमें कोई खुशी खुशी नहीं जाता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर बेटर है तो वहां पर ही जाएगा ना, बट प्राइवेट में जाना पड़ता है बिकॉज हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है. जबकि एज ए सिटीजन भी ऑल ऑफ अस पे टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह सब पे करते हैं. तो उसके बाद भी आपको हॉस्पिटल में अगर मैं एडमिट होऊंगा वो भी बीमारी की वजह से, हो सकता है डेंगू जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि ये वैक्सीन वगैरह का जो अभी स्वाइन फ्लू और ये सब आ रहा है. तो जहां पर पब्लिक फेल्यूर हो सकते हैं, हार्ट अटैक है, रास्ते का एक्सीडेंट किसी का हो गया, रोड खराब है, गवर्नमेंट का गलती है, तो वहां पर अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और 6-7 हजार रुपये पर डे चार्जेस है और मैं खुशी खुशी नहीं दे रहा हूँ, मैं क्यों वहां पर रह रहा हूँ? ताकि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो, मेरे घर वालों को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने को मिले, बिकॉज हो सकता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं चला जाऊँ. तो ऐसे काफी सारे रीजन हो सकते हैं जहां पर लोग प्राइवेट लेते हैं 6-7 हजार वाला. तो बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि वहां पर गवर्नमेंट बोल रहा है कि 5% जीएसटी अभी लगेगा एंड हॉस्पिटल को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. तो इफेक्टिवली क्या होगा, जो भी आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, अगर आपका 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए, वहां पर इफेक्टिवली आप बोल सकते हो 5-10 हजार रुपए मिनिमम बढ़ जाएगा, बिकॉज रूम चार्जेस उसमें आधे रहेंगे आपके. तो वहां पर ये बहुत ही, जैसा भी रिसेंटली मैं देखा, हमारे एक क्लाइंट है, स्लिप डिस्क की वजह से ना कि एक क्लाइंट लगभग 1.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिटेड है स्लिप डिस्क की वजह से. तो उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसने एक प्राइवेट रूम लिया है. 6-6.5 हजार रुपए चार्जेस है रूम का पूना में. बॉम्बे में भी आप देखोगे काफी सारे हॉस्पिटल में 8-10 हजार कॉमन चार्जेस है. तो वहां पर उसके ऊपर 5% उसको पे करना, ही ऑल्सो फील्स दैट पिंच. 5% की बात नहीं है, बट उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं मिलता है ना आपको. एक तो ऑलरेडी आप परेशान हो, स्लिप डिस्क ऐसे तो हुआ नहीं है, वो अलग अलग जो रोड पे जाता आता रहता है, तो टू व्हीलर पे वगैरह तो ट्रैवलिंग की वजह से हुआ है, रोड खराब है, और उसके ऊपर आप गवर्नमेंट बोल रहा है कि रोड खराब, और रोड टैक्स वगैरह सब हम देंगे, सब टैक्सेस भरेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड बेचारा हॉस्पिटल में चला गया तो उसके ऊपर आपको जीएसटी भी चाहिए. तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल आपको चार्ज करेंगे, आपका कॉस्ट जो नॉर्मल पर्सन का ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. तो सब एंट्रीज को मैं जैसा देखा आपने, कुछ टैक्सेबल एग्जम्प्टेड इंक्रीज भी हुए हैं, वहां पर इतना पिंच नहीं किया है, बट ये 5% बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है. आई होप कि गवर्नमेंट इसको रिविजिट करे एंड इस एंट्री को फिर से देखे. अगर आप में से किसी भी की कोई क्लाइंट हॉस्पिटल है तो प्लीज नोट करिएगा, ये 5% बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है आप सबको, हॉस्पिटल्स को भी. उसका रीजन क्या है कि जैसा 5% एप्लीकेबल हो गया, आपका हॉस्पिटल जीएसटी ऑडिट के दायरे में आ गया. जीएसटी ऑफिसर 1-2 साल बाद आपके हॉस्पिटल में आएगा, फिर वो सभी चीजें निकालेगा, रिवर्स चार्ज का क्या, बराबर है, आपका अलग अलग कमीशन इनकम या कुछ रहेगा, बिकॉज हॉस्पिटल का हमने एक एनालिसिस किया था, 20-30 टाइप्स का इनकम रहता है हॉस्पिटल का. हमको लगता है ट्रीटमेंट ही है, नहीं, वहां पर सेफ्टी चार्जेस, वो जो गेस्ट रहते हैं उनके लिए रहने के चार्जेस, आपका पार्किंग चार्जेस, वो जो कपड़े वगैरह धोने के चार्जेस, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमरस चार्जेस रहते हैं. तो वो सब चार्जेस को जो ऑडिटर है, जीएसटी ऑडिटर, वो चेक करेगा. तो आप में से कोई भी पर्सन जिसका क्लाइंट हॉस्पिटल है, उनको ये 5,000 रुपए का एंट्री शायद आज अप्लीकेबल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनके पास शायद हो सकता है कि 3-4 हजार रुपए पर डे का चार्जेस है. तो उस हॉस्पिटल का आज ही आप ऑडिट कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, भैया जो भी आपकी इनकम स्ट्रीम है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है क्या नहीं है. बिकॉज आज 5,000 पर डे पे किया है, जैसा आपने देखा कि जो आपका रहने का जो होटल का जो रूम है 1,000 रुपए के नीचे रहा तो एग्जम्पशन था, बाद में 1,000 रुपए के नीचे रहा तो अभी 12% जीएसटी लगा दिया है. तो वैसे धीरे धीरे 5,000 से लोग, गवर्नमेंट 3,000 करेगा, 2,500 करेगा, 1,000 रुपए करेगा, बोलेगा अभी हॉस्पिटल में आप रहे तो भी आपको जीएसटी देना है. तो इसके लिए इमीडिएटली बेसिस पे अगर आपका हॉस्पिटल में क्लाइंट है तो पक्का उसको रिव्यू करिएगा. देन प्री पैकेज कमोडिटीज का तो क्या ही कहना, कि जहां पर अगेन ये 2 एंट्री, ये भी एंट्री मुझे लगता है फूड ग्रेन्स का आप सबको पता रहेगा कि 25 किलो से कम अगर आपका पैकेज कमोडिटी है, जैसा 1 किलो का पोहा का पैकेट रहेगा,
तो वहां पर जीएसटी पहले एप्लीकेबल नहीं होता था। लूज में खरीदो या पैकेट में खरीदोगे तो जीएसटी नहीं था। अभी कह रहे हैं कि 25 किलो से कम वाला पैकेट है तो जीएसटी लगेगा, 25 किलो के ऊपर है तो नहीं लगेगा। तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी गवर्नमेंट कह रहा है होलसेल वाले डीलर जो है उनको बाहर रखेंगे, अभी सिर्फ रिटेल वालों को अंदर लेंगे। यानी कि रिटेल वालों का बेसिकली 1-1 किलो वाले जो भी पैकेट कमोडिटी बेच रहे हैं उसको जीएसटी लगाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा मुझे इनकरेक्ट लगा, बिकॉज सी जीएसटी एक टैक्स है, बराबर इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप कंज्यूमर से ले रहे हो। यहाँ पर लास्ट 2 साल में कोरोना में लोगों के हैबिट चेंज हो चुके हैं एंड पीपल हैव बिकम मोर कॉशियस नाउ। ये मंकी पॉक्स एंड क्या क्या नई नई बीमारी आ रही है तो लोग पैकेज प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा किसी को खुशी नहीं है कि पैकेज प्रोडक्ट दो, पैकेज प्रोडक्ट दो, उससे तो प्लास्टिक ज्यादा बढ़ता है, प्लास्टिक का यूज, बराबर है, इट इज मोर डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट। बट बिकॉज ऑफ द हर किसी को लगता है मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो और हाइजीन ज्यादा रहे, इसके लिए वो खरीद रहा है डर की वजह से, बीमारी की वजह से। तो वहां पर अगेन गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं हमको वहां पर जीएसटी चाहिए एंड वो भी मुझे कलेक्ट करना है। यानी कि लूज में खरीदूंगा तो नहीं एंड अदरवाइज लगेगा। तो अगेन थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि ये दो जो एंट्री है, फूड एंड हॉस्पिटल, जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल किया ना, वो अमाउंट से ज्यादा, परसेंटेज से ज्यादा ना पिंच ज्यादा करता है एक नॉर्मल कंज्यूमर को। वो मुझे लगा कि जीएसटी काउंसिल ने सर्टनली रिव्यू करना चाहिए। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज, 5% इज ऑलवेज स्टार्ट। हॉस्पिटल के ऊपर 5% लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार 12% नहीं करेंगे, 18% नहीं करेंगे। ये तो स्टार्ट है ना 5%, हो सकता है बाद में 12% करेंगे और बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, फिर 18% करेंगे। करेक्ट, ये तो स्टार्ट है, इसका फिनिश तो बाद में 18% होने वाला है। रिवर्स चार्ज तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जीटीए के केस में एक इंपॉर्टेंट चेंज है, आप सबको पता रहेगा। जीटीए के केस में टिपिकली पहले जो ऑप्शन था 5% रिवर्स चार्ज में आप पे करते थे जनरली, एंड अदरवाइज 12% जीटीए चार्ज करता था आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो, बिकॉज जनरली जीटीए रजिस्टर्ड होते ही नहीं थे। जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है वो रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी चार्ज करता था। तो गवर्नमेंट ने बोला है भैया अभी सभी ऑप्शन ओपन है। जीटीए को क्या ऑप्शन है, या तो 5% चार्ज कर या तो 12%, या तो रिसिपिएंट को बोला है तू 5% जीएसटी रिवर्स चार्ज में दे। बट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा कि जीटीए अगर अमाउंट चार्ज करेगा तो मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना है क्या नहीं, ये कंफ्यूजन होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी जीटीए चार्ज करना चाहता है जीएसटी 5% 12%, वो उसके इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन ऐड करे दैट वी आर ऑप्टिंग टू पे जीएसटी गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट द रीजन रिवर्स चार्ज में फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगेन मुझे लगता है कि ये एंट्री जो है प्रैक्टिकली जो भी आप रिव्यू वगैरह करते रहेंगे आपके क्लाइंट्स का, मंथली रिव्यू करते हैं वगैरह, तो उसमें पक्का चेक करिएगा कि अगर आपका जीटीए अभी जीएसटी गोइंग फॉरवर्ड चार्ज करने वाला है या चार्ज कर रहा है इनवॉइस पे, तो आपके सिस्टम में या आपने आपके क्लाइंट के अकाउंटेंट को बोला रहेगा कि भैया 5% 12% रिवर्स चार्ज में पे करो, तो गलती से वो डबल पे ना कर दे। यानी जीटीए भी चार्ज कर रहा है और आप भी रिवर्स चार्ज में चार्ज कर रहे पे कर रहे, तो वो ऐसा ना हो, वो पक्का चेक एक बार चेक करिएगा। जीएसटी आके 5 साल हो चुके हैं, अभी भी हम जीएसटी ट्रिब्यूनल की राह ही देख रहे हैं। अभी भी न्यूज आते रहते हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल आज सेट होगा, कल सेट होगा, पता नहीं कब सेट होगा। 5 साल तो चले गए हैं, बट नाउ द लाइकलीनेस इज मच हायर। तो वी होप एज सुन एज पॉसिबल जीएसटी ट्रिब्यूनल आए, बिकॉज काफी सारे जो अपील जो फाइल करने हैं ट्रिब्यूनल में वो पेंडिंग है। क्यों? बिकॉज ट्रिब्यूनल अब तक सेटअप हुआ नहीं है। जो फेक इनवॉइसिंग का जो सर्कुलर है वो जुगल जो नेक्स्ट हमारे स्पीकर है मिस्टर जुगल जोशी, वो कल कवर करने वाले हैं। इसके लिए मैं आज में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज नोट करिएगा जो फेक इनवॉइसिंग का सर्कुलर है उसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसिपिएंट के ऊपर कास्ट की है। बोलता है जो फाइनल पर्सन है जो क्रेडिट ले रहा है उसको हम टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाएंगे। तो अज्यूम करिएगा ए से लेके जेड तक इनवॉइसेस मूव हुए हैं। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को, और ऐसे करते करते जेड तक गए इनवॉइसेस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जो जेड पर्सन है जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, फाइनली जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, उसको हम बोलेंगे तू टैक्स पे कर, तू इंटरेस्ट पे कर और तू पेनल्टी पे कर, तीनों टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। वीज़ावी जो ए से लेके जो जेड के पहले वाले लोग हैं, बराबर वाई तक जो लोग हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट बोल रहा है हम पेनल्टी लगाएंगे 122 के अंदर, यानी वो सिर्फ पेनल्टी पे करेंगे। बाकी के जो लोग हैं जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, जो बायर है, जो रिसिपिएंट है, जो मेन पर्सन है जिसने क्रेडिट क्लेम किया है, उसको हम बोलेंगे टैक्स पे कर, इंटरेस्ट पे कर, पेनल्टी पे कर, तीनों। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है और ये बढ़ेगा बहुत।
आगे आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज गवर्नमेंट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी यूज करने वाला है, और काफी सारा जो टैक्स पेयर का बिहेवियर है, वैट रेजिम का, जीएसटी रेजिम का, वो सभी चेक करके गवर्नमेंट डिसाइड करने वाला है कि भैया किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। तो जो भी आपके क्लाइंट है, जो भी आपके, मैं कहूंगा कि जो आपके पास रिटर्न फाइल करते हैं, तो पक्का आप खुद के क्लाइंट का भी मैं कहता हूँ केवाईसी कराइएगा, यानी कि यू नीड टू नो योर कस्टमर, बिकॉज कपल ऑफ अभी फेक इनवॉइसिंग की जो रैकेट बस्ट हुए हैं, अभी हम कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे क्लाइंट बन चुके हैं, बिकॉज उस कंपनी के डायरेक्टर थे, उस कंपनी के जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो उनको भी डॉक्यूमेंट के लिए, डिटेल के लिए डिपार्टमेंट बार बार बुला रहा है, 2-2, 3-3 साल इन्वेस्टिगेशन ऐसे केस में चलता है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू टेक गुड केयर ऑफ सच काइंड ऑफ केसेस, कि जहां पर भी आपको सिर्फ ईमेल पे डेटा आ रहा है वगैरह, आप कहोगे कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, बट हम कहेंगे कि बी कॉशियस, यू नीड टू नो योर कस्टमर वेल, कि जो भी आपसे क्लाइंट इस तरह से जो भी फाइल करा रहे रिटर्न, बट यू नीड टू एटलीस्ट विजिट देम वंस, अंडरस्टैंड कि सही में उनका बिजनेस है क्या नहीं। प्रॉपर ईमेल पे कम्युनिकेशन रखिएगा, ताकि बाद में फेक इनवॉइसिंग वगैरह का कुछ भी केस हुआ तो एटलीस्ट आप उस पर इन्वॉल्व नहीं थे, आप ये प्रूव कर पाओ, इतना तो आपको पक्का ध्यान से केयरफुली चीज करना है। फाइनली फ्रेंड, ई इनवॉइसिंग आप सबको पता रहेगा कि 1 अक्टूबर 2020 में चालू हुआ था 500 करोड़ से, एंड विद इन जस्ट 2 इयर्स, 20, 21 एंड 21, 22, 2 इयर्स 24 मंथ, गवर्नमेंट ने 500 करोड़ से लेके उस लिमिट को 10 करोड़ पे रख रखा है। तो आप देख सकते हो 490 करोड़ का ड्रॉप सीधा, बराबर है, विद इन 2 इयर्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ई इनवॉइसिंग में क्या होता है, जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज ई इनवॉइसिंग में ना रियल टाइम पे गवर्नमेंट को पता चलता है कौन किधर से किसके ऊपर इनवॉइस रेज कर रहा है, एंड ई-वे बिल के बेसिस पे उनको पता चलता है कहाँ से गुड्स कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ से क्या मूव हो रहा है। और ई इनवॉइसिंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज गवर्नमेंट को क्या है कि आप आपके कस्टमर को इनवॉइस देने के पहले आपको गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ हाईलाइट करना है कि आपने 1 तारीख को इनवॉइस रेज कर दिया, तो गवर्नमेंट पहले ही आपको बता देगा, टू बी में क्रेडिट आने के पहले ही बता देगा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। तो गवर्नमेंट अभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से भी रोक सकता है आने वाले कुछ दिनों में। एंड दैट द रीजन ई इनवॉइसिंग ये बहुत बड़ा चेंज है, उसका इम्पैक्ट आपको सबको आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। एंड 10 करोड़ एक 5वां फेज है, इसके बाद 5 करोड़ होगा, उसके बाद 1-1.5 करोड़ होगा, यानी कि बेयर मिनिमम पॉसिबल तक गवर्नमेंट जाएगा मुझे लगता है ई इनवॉइसिंग में। एंड अगेन ये ऑब्वियसली as a tax authority it is good for them, but as a taxpayer certainly it's a very daunting, because बहुत real time basis पे ई-वे बिल बनाओ, ई इनवॉइसिंग बनाओ, फिर वो डेटा मैच करो GSTR1 के, और काफी सारा टैक्स प्रोफेशनल का भी उसमें टाइम जाता है। So that's the reason I think as a tax professional you need to be smart enough to understand these changes and how to implement these changes well in advance for your client, ठीक है, and in a well systematic manner। otherwise अगर ये ई इनवॉइसिंग आपने बराबर इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपको सबको पता रहेगा आपके क्लाइंट के ऊपर से ज्यादा आपके क्लाइंट के जो कस्टमर है उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अज्यूम करते हैं आपके क्लाइंट का टर्नओवर 17-18 में 15 करोड़ था, और आपने 1 अक्टूबर के बाद ई इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो आपके रिसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और वो रिसिपिएंट किसके पास आएगा, आपके क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट आपके पास आएगा। तो आप में से कोई भी अगर 10 करोड़ अबो वाले क्लाइंट को सर्व कर रहा है, तो इमीडिएटली उनसे बात करिएगा कि 1 अक्टूबर से इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल होने वाला है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, बिकॉज अलग अलग टूल भी आए हैं, हो सकता है टैली है, कोई एक्सेल का टूल है, गवर्नमेंट का टूल है, कोई भी आप यूज करें, फ्री वाले भी टूल है, जो टूल यूज करना है करें, बट उसका ट्रेनिंग वगैरह आपके क्लाइंट को पक्का दे के रखिएगा, अदरवाइज रिसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाएगा, ठीक है। तो विद दिस वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विथ आवर ट्रेनिंग नाउ। काफी सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर हमने डिस्कस किए हैं, बट फिर भी 2 घंटा या 2 hours इज टू स्मॉल अ टाइम to discuss all the changes, and that's the reason the institute has very smartly made this session into 2 parts. Tomorrow another session will be conducted by Mr. Jugal, जो remaining part है, जो remaining important changes है उसको cover करेंगे। अभी के जो changes हमने discuss किए उसके relevant, उसके related कोई specific point है तो please feel free to ask, अगर नहीं है then we can announce closure of the session। And before I close the session, before we move on to Q&A session, let me thank all the participants, because आपने काफी एक्टिवली क्वेश्चन पूछे, काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पूरे ट्रेनिंग में। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन। थैंक यू ऑल।
कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अभी जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर? एंड ऑब्वियसली जो भी प्रेजेंटेशन है उसका कॉपी हम मैडम के साथ, दीपाली मैडम सर के, रणदीप सर के साथ शेयर कर देंगे, जो आपके साथ आगे वो पीपीटी शेयर करेंगे। Sure, sir. If anyone has questions, please post it. A registered person giving flat to another registered person, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन है, समझो प्रीतम मावरे जो रजिस्टर्ड है, तो पहली बात तो ना रजिस्टर्ड पर्सन कर, यहाँ पर प्लीज पहले समझिएगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। पहली बात तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर प्रीतम मावड़े का कोई किराना का दुकान है, अज्यूम करते हैं, एंड मैं रेसिडेंशियल पर्पज, मेरा किराना दुकान जीएसटी पर्पज के लिए रजिस्टर्ड है, तो प्रीतम मावड़े रहने के लिए उसी 2 बिल्डिंग छोड़ के बाजू में एक जगह किराए पे लेना चाहता है अनरजिस्टर्ड से। मैं डिफिकल्ट बना रहा हूँ इसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो क्वेश्चन है ऐसे केस में रिवर्स चार्ज आएगा क्या? हमारे मानना है ये बिजनेस पर्पज के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ये रेसिडेंशियल पर्पज के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जीएसटी ट्रिगर नहीं होगा। बिकॉज हर बिजनेस बनना, बिजनेस का बैलेंस शीट अलग बनता है एंड इंडिविजुअल अलग बनता है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको लिटिगेशन अवॉइड करना है तो मैं बेस्ट बोलेगा उसके वाइफ के नाम पे ले लो ना, खत्म, प्रॉपर्टी किराए पे, तो आपको टेंशन ही क्या है, करेक्ट। तो वहां पर मुझे नहीं लगता जीएसटी आप रिवर्स चार्ज में लगेगा। थैंक यू पॉल जी, थैंक यू राजेश जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई होप अनुरुद्ध जी आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। आई होप सबके बाकी के भी क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। थैंक्स। So there's one question. Yes, Is GST applicable on hostel or dormitory if charges are less than 1,000 per day? यस, एप्लीकेबल हो चुका है। अभी 12% लगेगा वहां पर जीएसटी, और डॉर्मेट्री और वगैरह उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली लाया है, बिकॉज वो डॉर्म कल्चर जो अभी है ना बहुत बढ़ चुका है। हमारा टीम, हम अलग अलग एज अ फर्म, हमारे क्लाइंट पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, अलग अलग सिटीज में है। तो हमारा टीम जो पहले ट्रैवल करता था तो वी यूज टू स्टे इन एक्सोटिक होटल्स, 3 स्टार 5 स्टार वगैरह, बट अभी टीम हमारा खुद इंसिस्ट करता है कि सर मुझे हॉस्टल में रहना है। या अलग अलग जो है ना मुस्टैच वगैरह, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, काफी प्यारी प्रॉपर्टीज है। अगर आप एक बार रहोगे ना तो वहां आप भी एंजॉय करोगे लिटरली। मैं भी खुद अभी उनके साथ रहता हूँ। आज बॉम्बे में हम आए हैं तो हम टिपिकली अभी आज हम हॉस्टल में रहने वाले हैं अंधेरी में, तो हम भी एंजॉय करते हैं वैसे अगर आप देखोगे तो। एंड दैट द रीजन गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि अब ये प्रॉपर्टी काफी पॉपुलर हो रही है, बिकॉज यू गेट गुड वाइब वहां पर, यंग क्राउड आपसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मीटिंग का अच्छा जगह रहता है। तो दैट द रीजन पीपल आर प्रेफरिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। So that the reason government is saying GST is payable now there also. Chalo, any more question, madam? If not, we can then proceed for closure. Deepali madam. Yeah, I think there are no more questions. We could conclude the session. Before concluding, I would like to thank you, sir. Thank you so much. Your knowledge was very lucid, and we could know you covered many different aspects of GST, different areas, which was a very knowledgeable insight for us. Thank you so much, sir. I would like to thank our MCM member, CA Ajinkya Randive sir, also for being present with us. I would now officially like to say that the session is concluded. Thank you, Deepali madam. Thanks Randive sir, and thanks everyone, all of your amazing participants. ऐसे ही जो भी नेक्स्ट भी सेशन है सबके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछिएगा। जितना आप ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना फीडबैक स्पीकर को मिलता है। आई एम इवन थैंकफुल जो इनिशियल जो पॉइंट रेज किए गए थे, मुझे लगता है मिस्टर अग्रवाल ने रेज किए थे। तो जो भी आपकी इस तरह के पॉइंट है आउटसेट बिल्कुल बताइएगा, किसी को बुरा नहीं लगता है स्पीकर, हमको पता चल जाता है कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, रेज योर पॉइंट, है ना। चलो ऐसे ही 5 दिन आई होप एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका सबका साथ इसी तरह से सभी स्पीकर के साथ रहे। चलो, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। Yes, thank you, sir. थैंक दीपाली जी, बाय।